से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में हो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। હું આપણા કુમારભાઈ ચેટર્જી, ડૉક્ટર કુમારભાઈ ચેટર્જી કહું તો સારું લાગશે, કારણ કે કુમારભાઈ ચેટર્જી બોલવું એ ઠીક નહીં. સાહેબ સોરી, મારે બોલવું જોઈએ તો પણ ઓલું યુઝ ટુ થઈ ગયો ને એટલે કુમાર બોલાઈ ગયો, પાછા પણ બોલાય ડૉક્ટર સાહેબ. ડૉક્ટર કુમારભાઈ ચેટર્જીને અમારા એક મિલનભાઈ છે, મિલનભાઈ દોશી, અને અમારા પ્રવરભાઈ કોટેચા છે, એને એસ્કોર્ટ્સ કરીને સ્ટેજ ઉપર લઈ આવશે. મિલનભાઈ પ્લીઝ સાહેબ પધારશો. તમારી છત્રછાયાની નીચે આજે ઘાટકોપરની ધરતી છે. જય જિનેન્દ્ર. કાઠિયાવાડ સેવા સમાજ આપ સૌ શ્રોતાઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. આપ સૌ જાણો છો કે કેટલા વર્ષોથી અહીં આગળ વ્યાખ્યાનમાળા થાય છે, અને એક ટાઈમે આપણે ઝવેરબેન હોલ જ્યારે બુક કરતા હતા, મને બરાબર ખ્યાલ છે કે હું ત્યારે 15-20 વર્ષની હઈશ, અને ઝવેરબેનમાં સ્ટેજ ઉપર આપણે બધા બેસી જતા હતા. ઓડિયન્સમાં તો જગ્યા હોય જ નહીં, અમે ગેંગવેમાં પેસેજમાં બેસીએ અને સ્ટેજ પર, કારણ કે આપણે બધાને એટલો રસ હતો સાંભળવામાં, વક્તાઓ પણ એટલું બધું નવું નવું લઈને આવતા હતા. અને આજે આપણા બધાના સદનસીબે કુમારભાઈ ચેટર્જી બહુ જ વેલ નોન આર્ટિસ્ટ, વેલ નોન નામ છે આજે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, અને એવી વ્યક્તિ જ્યારે આજે આવી છે ત્યારે આ હાજરી થોડી મને દુઃખદ લાગી રહી છે. કે એવું નથી કે આપણે એડવર્ટાઇઝ નથી કરી, પણ છતાં પણ લોકોને હવે ખબર નહીં, સાંભળવું ગમતું નથી. બધાને મોબાઈલમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં બાપુની કે ગુરુદેવની 2 મિનિટની રીલ આવે ને 2 સેકન્ડની, એવી સાંભળીને બધાને સંતોષ લેવો છે. પણ તમે લાઈવ જુઓ તો તમને ખબર પડે કે એક વ્યક્તિની આખી જિંદગીનો નિચોડ આમાં હોય છે. કહેવાય છે કે દુનિયા મેં કોઈ કિસી કા મીત ન હોતા અગર ये दुनिया में संगीत न होता. કુમારભાઈ ચેટર્જીને આજે મ્યુઝિકનું જે છે વારસામાં એને ફેમિલીની ટ્રેડિશનમાંથી જ મળ્યું છે. જો ફેમિલીમાં તો ટ્રેડિશન ઘણી હોય, પણ તમે એને કેવી રીતે સક્સેસફુલી, ઇન્દિરા ગાંધી જેટલા સક્સેસફુલ હતા એટલે રાજીવ ગાંધી કે રાહુલ ગાંધી ન થઈ શક્યા, પણ કુમારભાઈ એમના ફેમિલીના નામને પણ રોશન કર્યું. એણે એમાં જ ડૉક્ટરેટ કર્યું. ખાલી ડૉક્ટરેટ કર્યું એટલું જ નહીં, પોતે અંદરથી સ્પિરિચ્યુઅલ હતા, એટલે એને જોયું કે આ બધા મ્યુઝિકની હારે હું મંત્રોને વણી લઉં તો કેવી રીતે બધા ડિસીઝમાં કામ લાગે, અને એણે પોતે સેલ્ફ એક્સપિરિયન્સ કર્યો, અને એમાં એને ગ્રાન્ડ સક્સેસ કે અભૂતપૂર્વ સફળતા મળી. એટલે એને પોતાની શ્રદ્ધા બેસી ગઈ. આજે હું કોઈનું બોલેલું, વાંચેલું, સાંભળેલું બોલું તો એટલી ઇફેક્ટ ન થાય, પણ જ્યારે મારા પોતાના પર હું એક્સપેરિમેન્ટ કરું અને મને એમાં સક્સેસ મળે તો હું એકદમ દિલથી અવાજ નીકળે. તમે કુમારભાઈની ભક્તિ સાંભળી હોય તો એને ખબર છે કે દિલથી એની અંદરથી અવાજ નીકળે છે. તમે આમ ગમે એટલા ઊંઘમાં હો ને તો તમે જાગી જાઓ અને તમે એકદમ એમાં લીન બની જાઓ. તમને ભલે મ્યુઝિકનો એમ પણ ન ખબર હોય તો પણ. આ કુમારભાઈએ જ્યારે પોતાને એક્સપેરિમેન્ટમાં સક્સેસ થયા પછી એણે બીજા પર એના પ્રયોગો શરૂ કર્યા, અને પ્રયોગોમાં એણે ટ્રીમેન્ડસ સફળતા મેળવી. પછી ધીરે ધીરે એમની ખ્યાતિ એટલી બધી વધી ગઈ કે દેશ વિદેશથી લોકો એમની પાસે ઇલાજ કરવા માટે આવતા હતા. કેન્સર, અલ્ઝાઇમર, પાર્કિન્સન્સ જેવા રોગોમાં એણે ખૂબ સરસ
રેમેડી આપેલી છે વિથ મ્યુઝિક એન્ડ મંત્ર. જૈન અને હિન્દુ મંત્ર દ્વારા જ એમણે આ બધા રોગોમાંથી રોગીઓને સાજા કર્યા છે અને દેશ વિદેશમાં એમના ઘણા પેશન્ટ છે. દેશ વિદેશમાં એમની એવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પણ છે કે જ્યાં આ બધું કામ થઈ રહ્યું છે. અને આટલી નાની ઉંમરમાં અનેક કન્ટ્રીઝમાં તમારું આટલું મોટું નામ થાય ને એ બહુ જ ખરેખર આપણે એઝ એ ભારતીય ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે કે કલકત્તાના, હવે આપણે એને મુંબઈના કહી શકીએ, તો એક કલકત્તાની વ્યક્તિ જેને આપણે કહીએ ને રવિન્દ્રનાથ ટેગોરની મ્યુઝિકની પ્રણાલીને આગળ લાવી, ખાલી આગળ લાવીને એને ખ્યાલ આવી ગયો કે ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં મ્યુઝિકને સ્પિરિચ્યુઅલિટી સાથે વણવું જોઈએ. જેમ કૃષ્ણની રાસલીલા હોય તો એણે ભજનો અને બધા સાથે મંત્ર હારે, વૈદિક મંત્ર અને જૈન ધર્મના મંત્ર, આજે તમને ખબર છે દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ મંત્રમાં પહેલો નંબર નવકાર મંત્રનો છે ને બીજો નંબર ગાયત્રી મંત્રનો છે. એટલે દુનિયાના બે બેસ્ટ મંત્ર આપણા દેશમાંથી છે, એનું આપણે પ્રાઉડ હોવું જોઈએ અને છે જ. પણ છતાંય કુમારભાઈ એના પર એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા અને એણે એટલું સરસ કામ કર્યું કે ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં એમને એક સ્પેશિયલ કેટેગરીનું પ્રાઇઝ મળ્યું છે. સ્પેશિયલ યુનિક કેટેગરી વિથ ધ ટાઇટલ રિજુવિનેટિંગ હેલ્થ થ્રુ મ્યુઝિક એન્ડ મંત્ર. તો આવી સરસ વ્યક્તિ આજે ઘાટકોપરમાં છે. ફરી એકવાર કહીશ કે અમને થોડી નારાજી છે કે ઓડિયન્સ બહુ ઓછું છે, જેને સાંભળવા માટે આપણે લાખ 2 લાખ ખર્ચીને જવું પડે ને એવી વ્યક્તિ આજે આપણી સામે આમનામ પર્યુષણનો પહેલો દિવસ છે, ભક્તિ કરવા પોતાના જ્ઞાનનો વ્યાપ આપણને દેખાડવા માટે આવી છે. અને આપણે એટલા બધા ક્ષુદ્ર લોકો છીએ કે એને જોઈએ એ પ્રમાણે ગ્રહણ નથી કરી શકતા. પણ તમે જ્યારે કુમારભાઈને સાંભળશો તો તમે સમજી જશો કે મારા શબ્દ ખરેખર સાચા છે, કારણ કે મેં એમને ઘણીવાર ઘણી બધી જગ્યાએ સાંભળ્યા છે. એમના તેજપાલ જેવા મોટા મોટા ઓડિટોરિયમમાં શોઝ થતા હોય છે અને ત્યારે લોકો ટિકિટ માટે પડાપડી કરતા હોય છે. તો આવા કુમારભાઈ ચેટર્જી આજે આપણી વચ્ચે છે. સર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જો ક્રાઉડ ઓછી હોય એનો વાંધો નથી, પણ ક્રાઉડ વધારે ઓછું એટલા માટે લાગે કે આપણે બધા સ્કેટર્ડ 2 અહીંયા 4 અહીંયા 5 અહીંયા એમ બેઠા છે. આજે મહાનુભાવો ઓછા છે તો તમને ફાયદો છે કે આગળ બેસવા મળે છે. તો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે આપ પ્લીઝ બધા આગળ આવી જાઓ, સારું લાગશે. વચ્ચેની આખી મિડલ રો ભરાઈ જાય ને સારું લાગશે. પ્લીઝ આપને બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે સૌ આગળ આવીએ. આટલા સુંદર વક્તાને આટલું સરસ નજીકથી સાંભળવાનો મને તમને મોકો મળી રહ્યો છે એ ખરેખર આપણા બધાનું નસીબ છે. ફરીથી વિનંતી કરીશ કે પોસિબલ હોય તો આપ બધા પ્લીઝ આગળ આવો અને હવે આપણે સૌ સાથે મળીને સાંભળશું કુમારભાઈ ચેટર્જી. આપને એક ખાસ જણાવવાનું કે કુમારભાઈ આજે જ સ્ટેટથી આવ્યા છે અને આપણા આ પ્રસંગને રિસ્વેસ કરવા માટે. અને આપણે ઘાટકોપરના, સોરી ટુ ટેલ યુ અબાઉટ, રિયલી આઈ વોઝ એક્સપેક્ટિંગ કે માણસોનો ક્રાઉડ આપણું આ ભરાઈ જશે અને નથી ભરાવાનું તો અમારું જે કરેજ હોય એનું અમને થોડુંક તો પેઇન થાય. પણ ઇટ્સ નોટ, તમે બધા આવ્યા છો એ અમારા સર માતાઓ, પણ જે નથી આવ્યા ને એને કહેવું જોઈએ કે જે ભાઈ, જે સ્પીકર આપણી પાસે આવે છે વિથ લોટ ઓફ એક્સપેક્ટેશન્સ એન્ડ લોટ ઓફ એફર્ટ્સની સાથે આપણી સાથે છે. અને આટલી અમે એફર્ટ્સ એન્ડ એનર્જી પુટઅપ કર્યા પછી તમારો કોઈનો વાંક નથી. હું તમને ખાલી મારા દિલની વાત કરું છું કે વોટ વી ફીલ અબાઉટ વ્યાખ્યાનમાળા. જેમ છાયાબેને કીધું એવી રીતે કે ક્રાઉડ અને બધી જગ્યાએ માણસોને બેસવાની જગ્યા ન હોય, એટલે લાસ્ટ ટાઈમ અમે વિદ્યાપીઠમાં કરેલું કે ક્રાઉડ ખાલી, જગ્યા ખાલી ના રહેવી જોઈએ. પણ એમ થયું કે આ વખતે સ્પીકર્સની બહુ મોટી તાકાત છે આપણી સાથે અને માણસોને બેસવાની કમ્ફર્ટ લેવલ રહેવા દો. જે ખાલી ખુરશી ઉપર બેસીને વાત કરે એના કરતાં સારું રહેશે ઓડિટોરિયમ. વી સ્પેન્ડ ગુડ મની ઓવર હિયર. અને ભલે ડોનરની તાકાત છે કાઠિયાવાડની સાથે, પણ પબ્લિકની એક્સપેક્ટેશન્સ હોય સ્પીકર પાસે, એને એ જ જોઈએ જ, બીજું કાંઈ જોતું નથી. સો આઈ રિક્વેસ્ટ કે કાલે તમે બધા આવો, એની સાથે સાથે તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ્સને લઈ આવજો. કાલે બી સારા સ્પીકર છે આપણી પાસે, 6 દિવસ સારા સ્પીકર છે, એકથી એક ચડે એવા સ્પીકર છે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ ઓફ યુ, લેટ્સ વી એન્જોય કુમારભાઈ, ડૉક્ટર કુમારભાઈ ચેટર્જી. પ્લીઝ, વી આર વેલકમ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Jai Jindu to all of you.
मैं शुरू करूं उसके पहले एक छोटा सा विनती है। होपफुली यू विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय दैट। मैं जो भी आपको कहने वाला, जो सुनाने वाला तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। तो आपने देखे होंगे कि नमस्कार महामंत्र के जो दिन था 9 अप्रैल, मोदी साहब ने जब भी प्रवचन देने के लिए आया, उन्होंने खाली पैर में आए थे, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। तो कैन आई रिक्वेस्ट यू कि आप आपकी चप्पल खोल के बैठेंगे, इट विल बी माई ग्रेट प्लेजर। नमस्कार महामंत्र की बात आप सुनेंगे तो आपको कभी कभार लगेगा कि भाई, अभी जैसे ही इन्होंने बताया कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मंत्र नमस्कार महामंत्र, ओके, यही साइज का फोन और किसी के पास भी होगा, इसकी कॉस्ट अलग होगा, उसकी कॉस्ट अलग होगा। कोई अगर पूछेंगे कि उनकी कॉस्ट क्यों 1 लाख रुपया है, तो आई विल से दैट दिस हैज गॉट द iOS 7, iOS 8, iOS 11, करेक्ट। तो वैसे ही नमस्कार महामंत्र में ऐसे कोई परमाणु है, जब भी आपको सुनाऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल है। और मैं जब भी गाता हूं, आंख बंद करके गाता हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2 जन है कि 5 जन है कि 10 जन है, मैं तो सब प्रभु को सुनाता हूं, यू नो। मैं सिर्फ और सिर्फ गाता हूं जनरंजन के लिए, जनरंजन के लिए नहीं है, क्योंकि जैन धर्म मेरे लिए पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर नहीं है, इट इज माई बाय चॉइस है। आपको शायद सुन के बहुत आनंद आएगा। आज दिन तक मेरा 60 बिल्कुल फैक्ट्री सेटअप है, नो काला, नथिंग, जो भगवान ने दिया वैसा ही रखा है। आज दिन तक सब, मैं कभी पिक्चर के धुन पे एक स्तवन की एक लाइन भी नहीं गाया हूं। वो धनाढ्य भी मुझे करोड़ों रुपया देंगे तो भी मैं एक लाइन भी नहीं गाऊंगा। वितराग भगवान की आराधना योगीराज श्रीमद आनंद जी जो मेरा गुरु है, उनके लिखा हुआ है रागों के ऊपर। तो मैं, जैन धर्म मेरे रग रग में है, मेरा अंतिम सांस तक ये चलते रहेगा। मेरा जीवन की जो अंतिम सांस में से भी, क्योंकि जैन धर्म मुझे बहुत कुछ दिया है। जो भी है, मैं एक्चुअली गाने वाला हूं, तो मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूं। अनंत संसार समुद्र तार नौकायताभ्यम गुरु भक्ति दाभ्यम वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम कवित्वराशि निशाकराभ्याम दौर्भाग्यदावाम बुधमालिकाभ्याम दूरीकृता नम्र विपततिभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री परंपराचार्य श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री साक्षात परम गुरुभ्यो नमो नमः। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं रमायरियाणं नमो वज्रायणं नमो सब्बसाहूण। ऐसो पंचण मुक्कार, भैया फोन बंद कर देना। ऐसो पंचण मुक्कार सब पावपणासणो मंगलणं च सव्यसिं पढमं हवै पढमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु
मंगलम स्थूल भद्रार्ध्या जैन धर्मस्तु मंगलम। अहो अहो श्री जिनसाशनम, अहो अहो श्री केवली प्रारूपित धर्म, अहो अहो श्री वीतरागाय, अहो अहो श्री 24 जिनवरा, अहो अहो श्री पर्वाधिराज महापर्युषण महापर्व। गुजरात में एक कहावत है, હું નાનો છું અધૂરો છું પણ તારો છું એ ગર્વ મને, તુજ સગપણની સમજ અમારે તો जीवन अनोखो पर्व बने। आपको इसके अर्थ पता ही होगा बिकॉज आप जैन हैं। सब आपको एक बात करूं, बहुत कठिन है जीवन में अपने आप को जानना। क्या नो नथिंग, ये शब्दों के द्वारा बोलना बहुत इजी है, मगर जब भी आप हृदय से बोलते हैं ना तो कोशों कोशों माइल तक दूर है। मैंने आपको जो बताया कि नमस्कार महामंत्र में ताकत, सब पहले जो 2 शब्द है नमो, तो नकार और मकार में कितना इंद्र धर्मेंद्र बैठे हुए आपको पता है? हाँ या ना? नहीं पता है ना? तो भूतबल्ली महाराज साहब कहते हैं नकार में जो जो आएंगे, मेरा एक विनती है चप्पल खोल के बैठिएगा क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है, इतना मेरा विनती है। तो नकार में कहते हैं कि नागेंद्र देवेंद्र नमस्कृताय देवादिशत्व क्षय कारकाय कर्मष्ट विध्वंसन तत्पराय तस्मै नकाराय। नकार में इतना एनर्जी है। तो मकार में क्या है? मान क्षय क्षुद्र पराक्रमाय संसार सिंधो जनतारकाय देवाधिदेवाय भवंतिकाय तस्मै मकाराय। नमस्कार महामंत्र में कितना शब्द है? 68। तो आप सोचिए कि पहले 2 शब्द में अगर इतनी इंद्र धर्मेंद्र नागेंद्र सुरेंद्र बैठे हुए हैं तो अगेन 68 पे कितना होगा? दिस इज द नमस्कार महामंत्र। और सब आप पता ही, मैं जब जैन धर्म अंगीकार किया, इट वॉज द 1988। आपको तो जन्म से मिला है सब। मैं 20 साल के बाद तो मुझे सायन हॉस्पिटल, वहां पे एक बिल्डिंग है अलंकार करके, सायन हॉस्पिटल के एग्जैक्टली कॉर्नर पे, वहां पे एक लेडी थे जिन्होंने मुझे बच्चे की तरह पाला था। सब ऐसे हुआ, उन्होंने मुझे ऐसा चिमटा मारा और उन्होंने पूछे कि आपको लगता है? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बताया कि आपने कभी सोचा, आपने कभी कोई जीव को जब भी काट के खाते हो उनको कितना लगता होगा? आप मानेंगे नहीं, वो दिन और आज के दिन मैं कभी मोड़ के नहीं देखा है। नॉट ओनली दैट, मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूं, मैं आपको कई लोगों से जैन से मैं ज्यादा जैन हूं। कई, मेरा आजीवन 24 के व्रत है, मैं बाहर पानी भी नहीं पीता हूं। अभी 2 महीने में मैं आपको वखान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुझे वर्षा में नहीं मिला है, मुझे इसको उपार्जन करना पड़ा। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप बहुत भाग्यवान हैं सब, इसको जाने मत देना। अभी एक साहब यहां पे बता रहे थे, हिमवल्लभपुरी महाराज साहब, वो आपके घाटकों पर की है, शायद आपको पता होगा। सब उनको जीवनचर्या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डेडिकेशन है नेमिनाथ भगवान के ऊपर। तो आपको पता है देश विदेश में नमस्कार महामंत्र से कई सारे बीमारी को ठीक करने की एक प्रयास चालू है। आप आपकी कई सारे बीमारी को ठीक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द नमस्कार महामंत्र। अगेन दिस इज नॉट द चमत्कार, प्लीज डोंट टेक इट एज द चमत्कार। नमस्कार महामंत्र कहते कि नमस्कार में चमत्कार है, चमत्कार में नमस्कार नहीं है। चमत्कार में नमस्कार इतना बड़ा मिथ्यात्व है। मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु भगवंत कहते, ज्ञानी भगवंत कहते, नमस्कार में जरूर चमत्कार है। तो ये बात को पहले जानना है। सब मैं आपको क्या बता, आप लोग तो सब जानते हैं नमस्कार महामंत्र को, बट कैन आई आस्क यू,
सिद्ध इज द साध्य है। स्टिल अरिहंत को क्यों पहले स्थान दिया गया है? आपने कभी इसके बारे में सोचा? हाँ या ना? देखिए, ये कोई प्रवचन नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, हूं नानो छो आधुरो छो पण तारो छो ये गर्भ माने। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मगर मैं आपसे पूछता हूं, आपने कभी इसके बारे में सोचा कि सिद्ध अरिहंत का भी साध्य है सिद्ध? स्टिल पहले शब्द क्यों अरिहंत है? कैन आई आस्क यू? नहीं, बोलिए ना प्लीज। दिस है कॉन्वर्सेशन है, बिल्कुल। मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया, मैं आपको बता रहा। आज की बात आपको एक नमस्कार महामंत्र के ऊपर एक क्लैरिटी आ जाएगा। तो वाई अरिहंतनम इज द पहले? नहीं, सही बात है। तो इसी को आपको लगता है कि कबीर जी ने यही बात को कहा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो पहले उपकारी कौन है? तो देखिए, हमने जो स्तुति गाया था वहां पे क्या दिया है? सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। पहले साक्षात परम गुरुभ्यो नमः। ओके, तो पहले गुरु कौन है? अरिहंत है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द अरिहंत? व्हेन यू सी द नमोरियंतनम, सब फोन नहीं, सब प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं। जहां पे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी होता है वहां पे ये सब नहीं होता है। और ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं साहब ने बताया इसके लिए मैं आया हूं। ये मेरा साधना है। मैं हर रोज 3:40 को उठता हूं। मैं अभी अमेरिका से आया, फिर भी मैं 3:40 को उठना छोड़ा नहीं है। डेली 3:40 आई गेट्स अप। आज से नहीं, 30 साल से। तो मेरा साधना है साहब, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। मैं पैसा लेकर कोई जगह पे प्रवचन नहीं करता हूं। तो सॉरी, आपको मेरा बात थोड़ा सा कठिन लगेगा सब, मगर साधना ऐसे है बापू। आपको पता है, तमने खबर छे मारा गुरु कच्छ ना हता, रबारी, गाय भैंस चराने वाले। वो छाती पे लात मार मार के मुझे सिखाया, छाती पे लात। विश्वास करिए, संकित प्राप्ति पुरुष सभी आचार्य भगवान उनके पास साधना सीखने के लिए जाते थे। साहब, साधना मार्ग बहुत सुंदर है मगर बहुत कठिन है। इसको जानिए, आपको बहुत आनंद आएगा। अगेन, नमोरियंतनम जब हम कहते हैं, डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स रिएक्शन इज क्रिएटिंग इन योर बॉडी? आपको किस तरह से केमिकल रिएक्शन शरीर के अंदर होता है और क्यों होता है? अपनी एक स्तुति पढ़े होंगे, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। पढ़े? हाँ या ना? पढ़े हैं? तो वितराग विज्ञान है। आपको कभी भगवान ना करे कोई बीमारी हो, मगर बीमार अगर होता है तो डॉक्टर साहब आपको पहले कहते हैं यू हैव टू चेक योर पीएच लेवल। व्हाट इज द पीएच लेवल? डू यू नो? पीएच लेवल इज द एसिडिक एंड अल्कलाइन लेवल। वितराग विज्ञान को आप अगर जानेंगे तो आपको कभी पीएच लेवल इंबैलेंस नहीं होगा, कभी कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगा। आपको बीमारी होना अच्छा लगता है कि निरोगी होना अच्छा लगता है? करेक्ट। ऐसे कौन सा सूत्र है जिसके अंदर कहा है कि पहले निरोगी, बाद में बोधि, बाद में समाधि? कौन सा सूत्र है? केम? नो? हाँ, ना चले। तमने याद नहीं तो कितने वंदिया मैया जी लोग उत्तमा सिद्ध आरोग्य भोहिलावाम समाई वरम उत्तम दिन। तो आरोग्य किसमें? लोगस में। करेक्ट। सेम ऐसे एक स्तुति है जिसके अंदर विषहर फुलिंग मंतम कंठे धारे जो सय मनुआ तस्सग्धरोग मारे दुष्ट जरा जंतु वसम। क्या सूत्र से? तो दैट मीन्स हर एक सूत्र में आपकी निरोगी की बात किया गया है। इज दिस नॉट द वेरी ब्यूटीफुल थिंग? प्रभु को पता था कि आपको साधना करने में अड़चन होगा। कितने लोग आप लोग पलट मार के बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं, घुटन की प्रॉब्लम है ना? तो आपको पता है नमस्कार महामंत्र एक मंत्र है जो कि आपको घुटन की ठीक कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पे कोई भी डॉक्टर को पूछ लेना मेरा नाम लेके। मेडिकल साइंस इज द ओनली द सपोर्टिव सिस्टम। ओके, it cannot give you the guarantee. Okay, it is just trial and the error. But प्रभु परमात्मा की वाणी में इतनी ताकत है, गारंटी को साथ में आप लिख लीजिए
अगर हर रोज करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपको घुटन की दर्द जाएगा। अगेन नो चमत्कार, नो चमत्कार। दिस द तो कौन सा आत्मरक्षा मंत्र किस किस को पता है? बोलिए। नो नो नो, मैं आपका परीक्षा नहीं ले रहा बेन, તમે મારા બેન જેવો છો, હું પરીક્ષા તો હું તમને કહું છું, ઓમ નમો લોય સબ સાવણમ મોચકે પાદયો શુભે। ये मंत्र अगर आप घुटन पढ़े, करेक्ट, बिल्कुल, तो તમે કરો છો નહીં, પણ તમે તમારા ઘૂંટણની દર્દ માટે તમે કરો છો ઓમ નમો લોય સબ સાવણમ। ओ वाओ, वेरी गुड, क्या बात है, धन्य છો તમે। તમે हाथ यू हैव टू मेक लाइक दिस वे एंड आपकी घुटन में आपको अप्लाई करना है ओम नमो लोय सब्ब सवणम मोचके पादयो शुभे। नॉट ओनली दैट, खब्बा दुखे છે કોને કોને? ફ્રોઝન શોલ્ડર નથી દુખતો? સરસ, એનીવન? ઓકે, તો તમને ખબર છે કે ખભા માટે પણ છે? કયા? પૂરા બોડી માટે તો છે યા, પણ ખભા માટે પણ છે ને? ખભા ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ યોર બોडी, करेक्ट? यस, नहीं नहीं, मेरे से इतना कहना है कि नमस्कार महामंत्र साधना भी है, साधन भी है, साध्य भी है। અને કદાચ તમને ખબર હશે નહીં પણ હશે, मोबाइल को वो सौतन को बंद कर देना पड़ेगा, वो आपके जीवन में सौतन है। आगम सूत्र में कहते हैं, भगवती सूत्र में पहले पेज उल्टा करिएगा, आगम में आप देख लीजिएगा, वहां पे लिखा हुआ है श्री पंचमंडल महाश्रुत स्कंद श्री नमोकार सूत्रम, नॉट द नमोकार मंत्रम, नमोकार सूत्रम। यस, मैं जो बता रहा हूं आप लिख लेना, देख लेना, मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूं। व्हाई इट इज द सूत्र नॉट द मंत्र? सूत्र मीन्स दिस इज द थ्रेड। थ्रेड का काम क्या होता है? जोड़ना। टू होम अरिहंत, टू होम सिद्ध, टू होम आचार्य साधु, दैट्स हाउ इट इज द सूत्र। तो कहते हैं ना जाति है ना भेद है, ये गच्छ से भी परे है। ये मंत्र, ये तंत्र, ये यंत्र वो स्वतंत्र है, वो अनादि, वो अनादि निराकार ब्रह्म है। वीतरागी देह की वह भाषा, वह अरूपी तत्व है। ये है नमस्कार महामंत्र। सब बहुत सुंदर है, इसको जाने मत देना सब। जिस दिन नमस्कार महामंत्र को आप समझेंगे ना सब, आपको लगेगा कि 24 आवर्स भी आपके लिए बहुत कम पड़ेगा, उसको आपको एम्ब्रेस करने के लिए मन करेगा। आपको पता है नमस्कार महामंत्र की साधना करते 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 पन्यास जी भगवान भदंकर विजय जी कितना उच्च पदवी की प्राप्त किया है। डू यू नो दैट थिंग? सब ये तो जानना है। परमादिराज पर्युषण महापर्व के 8 दिन में यू कैन मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ अष्ट महासिद्धि। डू यू नो व्हाट इज द अष्ट महासिद्धि? नो, आपको सब आज नया नया लग रहा है नहीं? मेरा गुरु ने मुझे सिखाया, उनकी बहुत उपकार है मेरा ऊपर। आज मेरा बापा नहीं है, मगर मुझे पता है, मैं पंकज भाई को बताया, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं अभी भी इनको ही बताया, प्रफुल्ल भाई को भी बताया, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलने वाला हूं। मेरा पापा जैसे जैसे मुझे बुलाते हैं वैसा मैं बोलता हूं। मेरे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, ये गाने के तानपुरा के लिए रखा हुआ है ये। ओके, सो अष्ट महासिद्धि, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व। आप लोग ने मिस्टर इंडिया करके पिक्चर देखा था अनिल कपूर की? देखा था क्या नहीं? इट इज द अनिमा। अपने अनिल कपूर को देख सकते थे? अनिल कपूर को देख सकते थे? नो, दैट इज द अनिमा।
You can make your body is the anu, सूक्ष्म, that is the anima. इसी तरह से 8 प्रकार की महासिद्धि प्राप्त करने का एक महापर्व है पर्युषण महापर्व। कल से मैं भी मेरा आराधना करने वाला हूं समित शिखर जी में, आनंद घन जी के ऊपर। हम ऐसा तो नहीं बता रहा मैं प्रवचन करूंगा, प्रवचन करने का मेरा ताकत नहीं, क्योंकि प्रवचन शब्द के अर्थ पता है आपको? अगेन, प्रवचन शब्द के अर्थ पता है? प्रवचन माता क्यों कहते हैं सब? भाई प्रवचन माता कहते हैं। प्रवचन शब्दनी अर्थ છે પ્રભુની વચન। પ્રભુની वचन में इतना ताकत है, जब 11 गणधर प्रभु को प्रदक्षिणा कर रहे हो और पूछते हैं कि प्रभु किम तत्वम, तत्व क्या है? तो प्रभु कहते उपन्नैव उपनीव। दूसरी प्रदक्षिणा किम तत्वम, तो प्रभु कहते विगम इव। तीसरी प्रदक्षिणा किम तत्वम, ध्रुव इव। कुमार जन्मी, कुमार मरे, मगर कुमार के अंदर जो कुमारत्व है वो बचा हुआ है। दिस द सो ब्यूटिफुल थिंग, यू नो। तो त्रिपदी से गणधर भगवान द्वारा कोई संप्रदाय में 45, कोई संप्रदाय में 32, उसमें अपने को नहीं जाना है, आगम की रचना किया। इसलिए प्रभु की वचन एक से अधिक, एक से अनंत बनते, इसीलिए उसको प्रवचन माता कहते। मां ही जन्म दे सकते हैं। प्रभु की वचन मां की स्वरूप है। तो मैं प्रवचन नहीं करने वाला, मैं आनंद घन जी के ऊपर बात करने वाला हूं। मेरा जीवन में साहब, आप लोग ने आनंद घन जी का कितने जन लोग नाम सुने हैं? बस बस yes. सब आपको एक बात करूं, आप अगर घाटकोपर में आप रहने वाले हैं और परिवार की आप अगर गांठिया नहीं खाते तो आपको घाटकोपर में रहने का लाइसेंस नहीं है, ओके? या तो आचीजा की आप अगर पाव भाजी नहीं खाते तो यू आर आउट, ओके? वैसे ही आप जैन धर्म की बात करते और योगीराज श्रीमद आनंद घन जी को नहीं जानते तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट द जैनिज्म। नॉट आई एम टेलिंग यू। आप जैसे मैं साहब आपको देख रहे हैं ना, ऐसे योगीराज श्रीमद आनंद घन जी 24 तीर्थंकर को देखते थे। अद्भुत, पढ़िए, आपके लिए खुली किताब हो जाएगा। मेरा जैसा गधोराम को अगर कुमार चटर्जी बना देता तो आपके जैसे लोगों को तो जरूर बना देंगे, यू नो सब। तो अगेन कम टू द नमस्कार महामंत्र। मैंने जहां से शुरू किया था, पीएच लेवल, यू कैन करेक्ट योर पीएच लेवल, एसिटिक एंड अल्कलाइन लेवल विद द हेल्प ऑफ द नमस्कार महामंत्र। बिकॉज नमस्कार महामंत्र में कहते हैं आपकी अंदर जैसे जैसा नमस तत्व की प्रकटीकरण होता है, आपका मनस तत्व की केमिस्ट्री चेंज हो जाते हैं। बिकॉज आपके अंदर कोई भी प्रकार की इप्स एंड बट्स नहीं होगा, राग अन्य द्वेष नहीं होगा। यू कैन करेक्ट योर पीएच लेवल। अरिहंत शब्द बोलने से हम पहले समझते हैं कि जिसको कोई शत्रु नहीं है। सब अरिहंत को क्या शत्रु होने वाला है? अरिहंत को क्या शत्रु होता है? ये शत्रु, बाह्य शत्रु की तो बात किया ही नहीं, आंतरिक शत्रु वो भी नहीं है। आगे जाके देखेंगे वो भी नहीं है, क्योंकि अरिहंत शब्द बोलने से यू विल फील दैट यू आर इन द ओशन ऑफ लव। जो चरम तीर्थंकर भगवान महावीर थे, गोशालक ने उनको काल में खिला चुके थे, मगर महावीर ने गोशालक को घृणा नहीं दे सकते क्योंकि महावीर के पास है नहीं। मैं पंकज भाई आपके किस चीज के बिजनेस करते हैं? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं। केमिकल, ओके। तो पंकज भाई मेरे अच्छे दोस्त हो गए, ऐसा तो जानते भी नहीं थे। अमेरिका से व्हाट्सएप पे बात होते थे, कभी कभार उन्होंने नाराज हो जाते थे कि आपने ये नहीं भेजा, ये ओपन नहीं होता है। मैं कैसे समझो, मैं यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहा हूं, मैं कैसे तो मैं पंकज भाई के ऑफिस में गया और मैं पंकज भाई को बोला, पंकज भाई मुझे 1 किलो टमाटर दो ना। पंकज भाई बोलेगा, कुंवर भाई मैं टमाटर के बिजनेस नहीं करता, मैं केमिकल भी बिजनेस करता हूं। नहीं नहीं, आप मुझे 1 किलो टमाटर दो ना। पंकज भाई मुझे 10 रुपया 20 रुपया दे देंगे, आप बोलेंगे तिलक रोड से खरीद लो टमाटर।
मैं घाटकोपर की खाया हूं साहब, मैं घाटकोपर में रहते थे यहाँ पे। कहाँ कहाँ पे कौन सा सब्जी मिलता है मैं आपको बता दूंगा, सब्जी वाले भी मेरा दोस्त है जो भी है। तो वैसे ही महावीर के पास तो घृणा था ही नहीं, तो महावीर गोशालक को दे तो क्या दे? प्रेम, प्रेम ही दे सकते। पंकज बाबू मुझे केमिकल दे सकते, टमाटर नहीं दे सकते। तो महावीर भी, महावीर के अंदर एक केमिकल था, वो केमिकल का नाम था गॉड पार्टिकल्स। दैट इज द गॉड, व्हाट इज द गॉड पार्टिकल्स? दैट इज द लव, LOVE। तो भगवान प्रेम ही दिया। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल पे एक लास्ट अक्षर लिखा है, डू अनटू अदर्स। आपको पता है ये शब्द के अर्थ क्या है? एग्जैक्टली, नमोरियंताणम। सी, वेयर इज द बाइबल एंड व्हाट इज द नमोरियंताणम? डू अनटू अदर्स मतलब आपको जो चाहिए आप वो दे दीजिए। तो महावीर को प्रेम चाहिए तो महावीर ने प्रेम दे दिया। आपको घृणा चाहिए तो आप घृणा देना, दे सकते। देना भी नहीं, कभी किसी को देना नहीं, क्योंकि हम क्या कहते हैं? भावे भावना भाविये, भावे भावे कितना भावना हुआ? 6। ठीक है ना? अरिहंत शब्द अरिहंत में आता है। आपको कभी लगता है कि अरिहंत शब्द में कौन सा रस उत्पन्न होता है? रस पता है आपको? आमरस नहीं, नो आमरस। आदरा हो गया, नो आमरस। नो नो बेन बोलेंगे अभी तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा, आप ऐसा नो बोलेंगे तो कैसा चलेगा? साधु में है नमो लो ये सब साधना में शांत रस है। अरिहंताणम में कौन सा रस है? नो, अनुकंपा रस है ही नहीं। यू आर टॉकिंग टू ए रॉन्ग पर्सन। देयर इज 9 प्रकार की रस है। जैन धर्म के अनुसार कर्म बंधन होने के नाते 3 प्रकार की रस को नाम नहीं लिया जाता है। एक को कहते विभत्स, एक को कहते हैं भयानक, एक को कहते हैं हास्य रस। ये 3 बिल्कुल बाहर। तो 6 रस है। पंच परमेष्टि की 5 रस, अन्य चूलिका में 1 रस, हो गया क्या नहीं? 6 रस। तो नमोरियंताणम में जो रस है दैट इज द अद्भुत रस। व्हाट इज द अद्भुत रस? प्रभु चाहते हैं कुमार भी प्रभु बने। वैसे कोई धर्म में आपने देखा कि कम ऑन तू इधर बैठ जा, मैं नीचे उतर जाता हूं, ऐसा कोई बोलते हैं? तो एक जगह में कहते हैं भक्ति सत्य भाव जो भरे प्रभु ने नीचे उतर वो पड़े, प्रभु ना वचन जो अंतर में उतरे, प्रभु ने नीचे उतर वो पड़े। कंडीशन दिया हुआ है, प्रभु ना वचन जो अंतर में उतरे। प्रभु का वचन क्या है? उपास करना, गप्पा मारना, सुबह उठ कर खर्र 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 करके मोबाइल देखना। अरे तू कौन सा धुरवायम मने कि सुबह सुबह तेरे पास मैसेज आने वाला है, इतना दुखी हो जाता है, खर्र कर आएगा नहीं, कितना नो। प्रभु का वचन में क्या है पता है? नो राग नो द्वेष। प्रभु ना वचन जो अंतर में उतरे तो प्रभु ने नीचे उतरવું पड़े। इफ यू वांट दैट प्रभु आपको पास आए तो आपको ये इनक्रेडिबल चीज को क्रिएट करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? नो राग नो द्वेष। अभी जैसे पर्युषण महापर्व चल रहे, हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, बहुत अच्छा, मैं भी नहीं खाता हूं, मैं आपको गारंटी को साथ में खाता हूं। मैं तो सब खिचड़ी खाता हूं, मैं कुछ भी नहीं खाता हूं। मैं 1.5 महीना पंकज भाई अमेरिका में थे, आप किसी को भी मेरा होस्ट को पूछिए, सुबह दोपहर शाम, उनको भी पता है, मिलन भाई की साली साहब यहाँ पे है, उनको भी पता है, मैं सुबह दोपहर शाम मैं खिचड़ी खाता हूँ। ना मैं पिज्जा खाता हूँ ना मैं पास्ता खाता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं जो भी बोलूँ लोग मुझे ला के देंगे, मगर मैं ओनली खिचड़ी खाता हूँ। तो मैं तो नहीं खाता हूँ, मगर मेरा सब इतना ही कहना है कि पर्युषण महापर्व की सब इसके ऊपर ध्यान देना है। वो भी अगर ध्यान देते हैं तो तब શું बनाओ चना कठोर, नमक कम हो जाता है तो कितना मजा आता है। आज मानेंगे नहीं, मेरा घर पर मूंग बना है,
जो बेन जी ने बना के गया है, मेरा नियम है, मेरे गुरु ने सिखाया कि खाने के बाद टेबल पे कुछ भी नहीं बोलना। अब विश्वास करें, प्रॉमिस टू माय गुरु, खाने के बाद तो मैंने मेरा भाई को बताया, भाई आप एक बार चेक कर लेना, शायद नमक कम है। तो नमक कम हो जाने के बाद आपके मुंह ऑस्ट्रेलिया की मैप की जैसा हो जाता है कि भारत की मैप की जैसा रहते हैं। दिस इज द आराधना। प्रभु कहते रस की त्यागी सबसे बड़ा त्याग है। आप क्या खा रहे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नमस्कार महामंत्र की एक आपको घटना बताऊं तो आपको सुन के बहुत आनंद आएगा कि घर जैसे है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। नाथद्वारा में एक संत महात्मा थे जिनका नाम था संत भूरीबाई। सब वो बिल्कुल अंगूठा छाप, कुछ भी नहीं आता है। कितना उन्होंने नमस्कार महामंत्र को आराधना किया है, आपको सुन के आपको आंख में आंसू आ जाएगा। भूरीबाई को कहते थे कि नाथ द्वारा की मीराबाई, एपिटोम ऑफ द भक्ति। तो एक दिन भूरीबाई को टाइफाइड हुआ, उनको खाने को इच्छा नहीं हो रहा, बहुत गरीब थे, और रोटला, नो घी, पैसा ही नहीं है। तो उनको इच्छा हुआ कि एक मिर्ची लगा के उन्होंने रोटला खावे। मन में उनको कह रहे कि मुझे एक रोटला को साथ में एक मिर्ची चाहिए, और दूसरी साइड में वो बता रहे नो भूरी तुझे नहीं मिलेगा। अगेन उसको इच्छा हो रहा है, अगेन वो बता रहे नहीं मिलेगा। 3 बार के बाद फिर भूरीबाई, उनके बाजू में एक लेडी बैठे थे, उन्होंने बोला कि वो सामने वो तबेला होता है ना, तबेला, वहां से गोबर लेके आइए। अब एपिटोम ऑफ द भक्ति सुनिए, कहां कहां पे लोग साधना करते हैं। तबेला से गोबर लेके आए, आनी रोटला के ऊपर लगाए, और उन्होंने खुद को कह रहे भूरी तुझे मिर्ची खाने का था ना, मिर्ची का चटनी खाने का था ना, नहीं खा लिया। दिस इज द एपिटोम ऑफ द भक्ति। नो साहब, वो मुंह तेरा नहीं, कितना खुशी की बात है, उन्होंने स्वाद को किस तरह से मारा है। यही साधना है सब, यही साधना है। इसलिए नमस्कार महामंत्र के अरिहंत के जब आप साधना करेंगे, आपके अंदर एक अद्भुत रस तैयार होगा। इट इज नॉट द ब्यूटीफुल थिंग। सब हम सिद्ध परमात्मा की जब भक्ति करते हैं, हम इतना तो जानते हैं कि 8 कर्मों को उन्होंने नष्ट किया है, खत्म किया है। ये कौन सा रस उत्पन्न किया है उन्होंने? सब नमस्कार महामंत्र इज द एपिक। इट इज नॉट दैट इतना शब्द है, 8 शब्द है, नहीं। आगे नमस्कार महामंत्र के हर एक शब्द के ऊपर आप अगर बिंदु लगा देते, डॉट्स लगा देते, इट कैन बी द सिंधु, बिंदु बिकम द सिंधु। हाउ? आप कहते हैं नमो अरिहंताणम, कहते हैं ना। आप किसी को बोलेंगे, वो बोलते हैं मैं नमस्कार महामंत्र की 1 माला करता हूं। आज तू 1 माला करने में कितना टाइम लगता है आपको? हाय हाय 10 मिनट में। अरे कैसे करते हैं? हो गया। आपका प्रार्थना सभा में कभी गाया है? लास्ट बोलते 12 नौकर की, है ना। इधर तो बोले नहीं, यहां पे खत्म नहीं हुआ। ये नमस्कार महामंत्र नहीं है सब, ये तो बचपन ही है, बचपन की खेल है। मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आया, मैं आपको यही बता रहा हूं, आप करके देखिए, आपको जीवन के आन होनी चीज ऐसा होनी हो जाएगा, आन होनी चीज। इसी तरह से आपके घाट को पर की एक जन ने, जिन्होंने आनंद घन जी के ऊपर बुक्स लिखे थे गुजराती में, सब मैं बंगाल की छोटी सी गांव की हूं, बंगाली मीडियम में पढ़े हुए, मुझे हिंदी भी नहीं आता था। आपकी 60 फीट पे उन्होंने रहते थे, उनका नाम था रायचंद भाई आजानी। अगर नाम सुने होंगे तो आपको पता होगा। उन्होंने आनंद घन जी के ऊपर एक बुक्स लिखा था गुजराती में। माटुंगा उडुपी होटल खाए होंगे, इडली मलगापुरी को साथ में डेफिनेटली खाए होंगे। वहां पे अभी भी वो पस्ती वाला बैठते हैं। दैट टाइम आई वॉज वेटिंग फॉर 166 नंबर की बस, डबल डेकर बस। ओके,
आई एम टॉकिंग अबाउट 87। तो खड़े था बस नहीं आया तो क्या करना है, टाइम पास करना है। तो मैंने देखा पीछे पस्ती वाला है, तो मैंने एक बुक्स उठा के पढ़ने लगा। इट वॉज इन द गुजराती, कैन यू बिलीव? मैं आपको ये बताया कि नमस्कार में चमत्कार है, चमत्कार में नमस्कार नहीं हो सकता है। तो महावीर भी कर सकते थे। सब मेरा साथ में हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी को पूछ लेना। वो बुक्स अभी भी मेरा घर पे है। गुजराती पढ़ना ही नहीं आता था, तो मैं 5 मिनट बुक्स को देखा और मुझे इतना पता चला वहां पे राग और ताल की बात कुछ तो लिखा हुआ है, इतना मुझे मालूम पड़ा। बाकी मुझे वो बोलते ना के भाई काली अक्षर एग्जैक्टली, मैंने काई खबर ना पड़े, भगवान ने सम खाई ना तमने कहूं छू। तो मैंने बुक्स लिया और फिर बुक्स वापस ऐसे रख दिया, और बुक्स का तभी भाव था 5 रुपया 87। तो मैंने बुक्स रखा, तो उन्होंने बताया क्यों नहीं लेना है। मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो पता नहीं उनको क्या मन में हुआ, उन्होंने बोला नहीं आप लेके जाइए। 87। मुझे गुजराती पढ़ना नहीं आता है, मुझे हिंदी भी पढ़ना नहीं आता है, सब बंगाली यानी इंग्लिश लिखना आता था, बोलना नहीं आता था। घर पे गया, यही आपको बता रहा, अगर आप अक्षर ब्रह्म की साधना करेंगे, उसी रात को आनंद घन जी का पद में आप पेज उल्टा करके देख लीजिएगा, 15 नंबर पद में लिखा हुआ है, अवधु क्या मांगो गुणहीना बेगुण गणिना प्रवीणा, अवधु क्या मांगो गुणहीना। जैसे लगा योगीराज 3:40 तो मेरा समय है। तो जोगीराज, आपको लगेगा ये मैं आपको बना के बोल रहा हूं, मुझे बनाने बोलने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे कोई संघ नहीं बनाने का है, कोई टोड़ा नहीं बनाने का है। मैं साधना करता हूं, ऐसा ही करते करते एक दिन हाथ उठा के ऐसा ही जोगीराज के गाते गाते मेरा शरीर छूट जाएगा। दैट इज मेरा टारगेट, वो जरूर होगा। तो मुझे जो आपको बिल्कुल इंप्रेस करने के लिए कोई भी बात नहीं करना है। मैं जो बात कर रहा हूं 1 to 1 इट इज द फैक्ट है। आप करके देखिए, नमस्कार महामंत्र की अगर इस तरह से आप साधना करते हैं, ओम नम नमो, ओम मम नमो, ओम अम नमो, ओम रम नमो, ओम हम नमो, ओम तम नमो, ये अरिहंत अम रम हम तम कभी इस तरह से किया है नमस्कार महामंत्र के साथ में? केम નથી બેન, નથી કરવાનું? તમને નથી જોઈતું જીવનની કલ્યાણ નથી જોઈતું? માને જોઈએ છે, आई वांट दैट थिंग। मैं मर जाऊं तो भी चलेगा, मगर मुझे तो ये पाक ही जाना है। और मेरा बापा की कृपा से ये मेरा गारंटी है, मुझे सम्यक दर्शन होगा 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 100%। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, उसमें मेरा कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। क्योंकि मैं भगवान से कभी नहीं मांगा मुझे मर्सिडीज दे दो, मैं कभी नहीं मांगा मुझे डुप्लेक्स दे दो, मैं कभी नहीं मांगा मुझे करोड़ों रुपया दे दो, बिल्कुल नहीं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं इसी तरह से ही हूं और इसी तरह से रहता हूं। मैंने तो जरूर मुझे होगा, ये मेरा गुरु के ऊपर मेरा श्रद्धा है। मगर कब? जब मैं इस तरह से साधना करूंगा। आपको संपुट पता है? मैं टाइम नहीं देखता, पंकज भाई आप मुझे बताते ना, हाँ प्लीज। हाँ, संपुट पता है आपको? व्हाट इज द संपुट? नहीं तमे तमे बोलो, शर्माओ नहीं, बिल्कुल बोलिए। मुझे आपसे भी नहीं आता था, आपको तो फिर भी आता है, मुझे नहीं आता था। जोर से बोलिए। संपुट पढ़, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नहीं बिल्कुल બેન, પણ તમને ખબર છે બેન कि આપણા શાસ્ત્રના ક્યારથી આ સંપુટની વાત કર્યો છે? ક્યારથી છે? You will be surprised to know कि भगवान को पता था कि संपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे इस धर्म से ये सब विलुप्त हो चुका है। वाई? एट व्हाट कॉस्ट? एग्जैक्टली। मेरा भी मां साथी जी मुझे सिखाया, डॉक्टर दिव्य प्रभा साध्वी जी महाराज स्थानकवासी के थे देवलाली पे। आज बोलने के लिए मुझे अचकाएगा नहीं, मगर मैं आपको कहता हूं मेरा कितना उपकारी थे साहब। ऐसे लोक में नहीं कहा जाता है, मगर मैं आपको कहता हूं, मैं तो मां साहब का कहते थे कि मां साहब आप कई जन्म में आप मेरा मां तो थे।
मैं 3 बजे घर से निकलता था गाड़ी लेके, मेरा ड्राइवर था पांडे जी करके। 7 बजे हम जब देवलाली में पहुंचते थे साहब, महाराज साहब उनकी गोचरी से 3 पराठा और चाय मेरे लिए निकाल के रख देते थे। ये अरिहंत की साधना है। कैन यू बिलीव दैट थिंग? कैन यू बिलीव? आप विश्वास करेंगे? मगर मैं महाराज साहब को, मुझे ब्लैकमेलिंग करना आता था, पता है मैं कैसे ब्लैकमेलिंग करता था पता है? और महाराज साहब मुझे कहते थे कि कुमार भाई आप है ना बहुत बदमाश आदमी हैं। तो मैं क्या करता था, उनको 2-4 आनंद खर्ची का स्थापन सुना देते थे। जैसे सुना देते थे महाराज साहब ऐसा भर भर करके निकालना चालू हो जाता था। इतना गहरा गहरा तत्व सिखा के गया कि आप कल्पना भी नहीं करेंगे। मगर पहले आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपको कुछ गाना तो पड़ेगा ना। बहर बहर नहीं आवे, ज्यों जाने त्यों कर ले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे अवसर, बहर बहर नहीं आवे। नहीं आएगा साहब, एक बार आया, नेक्स्ट जन्म में व्हाट इज द गारंटी आप घाटकोपर में रहेंगे, जैन बनेंगे, आपके घर पे सुविधा होगा, आपके 5 के 5 इंद्रियों काम करेंगे, कोई गारंटी है? नो गारंटी। बन you have to create, you have to manifest that energy, and manifestation can be done only with your energy. Nobody can do. अगर कोई आपके लिए मैनिफेस्ट कर सकते थे तो गौतम के लिए, गुरु गौतम के लिए प्रभु महावीर जरूर कर सकते थे। नहीं किया, नहीं किया। वो चीटी की स्टोरी पता है आपको? चीटी चीटी स्टोरी पता है? तो ऐसे है, चीटी बन तो यमराज आए, चीटी बन को बोला देखो कल तुम मरने वाले हो, मगर तुम एक काम करना, मरने के बाद और किधर मत जाना, सीधा स्वर्ग में आ जाना। तो चीटी को थोड़ा हमारे जैसा अहंकार आ गया, ठीक है। तो चीटी में चलन में थोड़ा फेरफार हो गया, स्वर्ग में जा रहे, भगवान बुला के लेके आए। तो दूसरा दिन उनका मृत्यु हो गया, वो एकदम एकदम तगड़म तगड़म करके ऐसा चलने लगा। तो सब लगा चीटी बहन को हुआ क्या है? तो चीटी बहन थोड़ा कॉलर, कुछ नहीं यार, मुझे यमराज ने बुलाया, बोला सीधा स्वर्ग में आने के लिए, मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई पूछते नहीं, तमने कोई पूछे पर नहीं क्या जाओ छो, હું સામાયિક કરવા માટે જાઉં છું। अरे तने पूछ्યું कोने? ये अपने के बोलने को, मंदिर से आ रहा हूं। कभी हमने बोला कि अभी हमने पिज्जा खा क्या है? पॉल्यूशन के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जो भी है। तो चीटीबन को काव्य देखा ऊपर से झाड़ से कि चीटीबन का तो चलने में तो कुछ गड़बड़ी है। तो चीटीबन को पूछता, चीटीबन तुम्हें क्या जाओ छो? बोलते मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूं। ओहो, तो चीटीबन एक काम करो ना यार, मैंने पल ले चलो ना, अभी जा पापा। कंधे पे चीटीबन का कंधे पे बैठ गया, चीटीबन चलते चलते, और चीटीबन का चलन में फर्क नहीं हुआ, एकदम आगे गए। तो हिरण मिले, हिरण चीटीबन को बोलते, चीटीबन सोचे आ બધું તમે કાવવાને લઈને ક્યાં ચાલ્યા? હું તો સ્વર્ગમાં જાઉં છું। કેમ? મને જોમરાજ બોલ્યું कि तू स्वर्ग में આવી जा। तो हिरण भाई बोलते यार मुझे भी बहुत तकलीफ होता है, ये मारते वो मारते, मुझे भी ले चलो ना। तो बोलते ठीक है तू भी आ जा, वो भी आ जा। गया, आगे जाके एक हाथी भाई मिले। हाथी भाई चीटीबेन को देखते हुए, चीटीबेन आवा तो शू તમે नाटक करो छो, क्या चाहला? तो मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ। बोलने का ढंग भी अलग है, जैसा हमारे में इधर किसी का इंग्लिश नहीं आता, मैं ऐसा कंधा ऊंचा कर देता, अरे हाउ आई कैन नो, यू डिडंट टेल मी। તમે અમેરિકા માં જાઓ ને, એક લાઈન માં 5 તો યુ નો બોલે, કુમાર ટુડે વી હેવ ટુ ટુડે વી હેવ ટુ સિંગ, अरे हाउ आई नो। तो ये एक व्याधि है, यूनो का एक व्याधि है। एक्चुअली यूनो शब्द आया है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां से आ गया यूनो। तो जो भी है, तो हाथी भाई बोलते हैं यार मुझे भी बहुत तकलीफ है, जंगल जंगल में घूमना पड़ता है, प्लीज मुझे भी लेके चलो ना। तो हाथी तू भी आ जा मेरे कांधे पे। तो सब कांधे पे लेके पूरा जंगल को लेके चीटीबेन गया यमराज के दरबार में। चित्रगुप्त जी दूर से देख रहे हैं, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये सब कहां से पलटन आ गया है। तो चित्रगुप्त जी भगवान को कह रहे कि भगवान बात क्या हुआ, तुम किस किस को बुला के लेके आए? बोलते नहीं मैंने तो किसको नहीं बोला। तो चित्रगुप्त जी रजिस्टर देख रहे,
रजिस्टर चेक करके देख रहे हो, इट इज एंट्री फॉर 1 पर्सन। जैसे मुझे गाड़ी पार्क करने के लिए मुझे पंकज भाई को फोन करना पड़ा तो एक जन का एंट्री है। तो जमराज को बोलते प्रभु करूँ क्या, इतने सारे हैं। बोलते एक काम करते। तो जमराज जैसा पर्दा उठा के देखा तो बहुत भीड़ है, तो बोलते एक काम करो, वो भी जमराज है, तुम बाहर जाके बोलो कि जिसने अपने पैर के ऊपर चल के आया वही सिर्फ अंदर है, बाकी सब वापस आउट। आगे पता चल गया आपको तो हमारा मतलब बापा कोई ना करे, यू हैव टू मैनिफेस्ट दैट एनर्जी योरसेल्फ। एंड कायनात की एक सिस्टम है, यूनिवर्स हैज वन वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ पास्ट और फ्यूचर, ही ओनली अंडरस्टैंड द वर्तमान। તમે કોઈ સાધુ ભગવંત પાસે જાઓ અને એને કહો कि काले मारा घर तने गोचरू भरावा आवाना छो, तो इन्होंने क्या बोलेंगे, हाँ हाँ कोशिश करूंगा देखूंगा, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान योग। ओके, तो वर्तमान की इतना वैल्यू है। तो आपको जब कायनात को सब पे बात करना है, मेरा हर एक पेशेंट को मैं कहता हूं, मेरा पेशेंट के अंदर 4th स्टेज कैंसर वाला भी पेशेंट है, मैं उनको कहता हूं आपको सिर्फ आपको स्वीट 16 को याद करना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद करना है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? स्वीट 16 मतलब आपको 16 ईयर्स की उम्र में आप कैसे देखते थे, कैसे चलते थे, कैसे, ये आपको याद करना है। कायनात इसमें मानते हैं मैं ये हूं, ये बनूंगा, ये नहीं। इवन आप जब उपसक्रम करते, इट इज ऑल्सो सेइंग दैट वर्तमान योग उपसक्रम पासम पासम बंदामी कम घन मुक्कम, मुक्त होने के लिए विसहरा विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम, वर्तमान योग की बात करते हैं। तो अगेन आपके लिए कोई चमत्कार कर नहीं पाएगा, लिख के रखना। प्रभु भी नहीं, वो करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं, वो आपको पैरासाइट नहीं बनाना चाहते हैं। तो गौतम के लिए करते थे उन्होंने 36,000 बार उन्होंने उत्तराध्याय सूत्र में गोयमा 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 गोमय करते थे। नहीं, आपको करना पड़ेगा एंड यू कैन मैनिफेस्ट दैट एनर्जी। आप मानेंगे क्या नहीं मुझे पता नहीं है, आपके सामने मैं खड़ा हूं उसी की बदौलत हूं। सब आप 3:40 को एक बार उठ जाइए, प्रभु को सैल्यूट मार दीजिए, आपको नहीं होने वाला काम भी हो जाएगा। हम लोग का एक स्वाध्याय का ग्रुप है जिसमें मिलन भाई भी है। सब लोग 3:30 बजे उठ जाते हैं, 10 मिनट करते हैं, फिर जाके सो जाते हैं। मैं आपको बोलता नहीं, मैं पूछ भी लीजिए, इन्होंने जानते हैं उनको, मैं आपको ऐसा ही नहीं बात कर रहा हूं। तो नमो सिद्धानाम जब आप बोलते हैं, आपको कैसे भाव होना चाहिए पता है? इस तरह से भाव होना चाहिए, जयति जय आदिनाथ जुनपति जय न धर्म शिशिरोमणि अरिहंत सिद्ध आचार्य वाचक सर्वसाधु विघ्नहर्ष चिंतामणि श्रीप्रथम तीर्थंकर ऋषभदैव सुतनित ध्याव तुमको सकल सृष्टि अखिल विश्व ब्रह्मांड में प्रभु रखना अपनी कृपा दृष्टि गुणी साधक श्रेष्ठ बाधक बिना बादन से रिझाए यक्ष गणधर सिद्ध सुर नर मृदंग के संग द्रुपद गाए बद्ध की गति बंद ना हो ये अमित वरदान दो हर बद्ध गुंजे जगत में संगीत दीप्तिमान हो संगीत दीप्तिमान हो संगीत दीप्तिमान हो। दिस इज द वीर रस। तो सिद्ध की जब साधना करेंगे आपके अंदर ये प्रकट होना चाहिए, वीर रस प्रकट होना चाहिए, क्योंकि सिद्ध की कलर क्या है? हम रेड कलर की साधना करते हैं सांसारिक काम के लिए, करते हैं क्या नहीं? आपकी पतिदेव आपकी बात नहीं सुना तो कितना बढ़िया होता है क्या नहीं होता है? तो सिद्ध के लिए नहीं होता है मगर जरूर होता है। आचार्य आचार्य को कलर क्यों पीला कलर है? आपको कभी प्रश्न हुआ? नो? सब हर बात में आपको प्रश्न होना चाहिए। तो कहते हैं महावीरनो धर्म छे सूरानो कायरनो नथी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ है ना? तो आपको प्रश्न होना चाहिए। क्यों नहीं आपका प्रश्न होता है? एज अ बंगाली अगर मुझे ये प्रश्न होता था तो आपको क्यों नहीं होता है? कैन आई आस्क यू? बोलो पंकज भाई,
पंकज भाई बोलेंगे नेक्स्ट ईयर तो यू आर कैंसल। आप इतना प्रश्न पूछते, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बापू, જ્યાર સુધી તમે પ્રશ્ન ના પૂછો ત્યાર સુધી તમારે आंसर ना મળે। गौतम प्रभु के पास जाके, पता है गौतम इतने ज्ञान की धनी थे, गौतम के पास से 2500 गया ना, एक भी वापस नहीं आए। महावीर के पास से तो जितना गया उससे आधा से ज्यादा तो वापस आ गए। फिर भी गौतम कैसे प्रभु को सामने करते थे, ओहो अच्छा प्रभु ऐसा, अच्छा ओहो हो, ओ मतलब इतनी वो प्रभु की अहोभाव, एक बच्चे जैसे। હું નાનો છું, અધૂરો છું, પણ તારો છું એ ગર્ભ મને, તુજ સગપણની સમજ મળે તો જીવન અનોખું પર્વ બને। This is the Parvadhira, that is the Namaskar Mahamantra, sir. Too beautiful I can tell you. एक मैं आपको एक मंत्र सुनाता हूं। कंबाला हिल हॉस्पिटल में मेरा एक पेशेंट 3rd स्टेज thyroid cancer and her platelets level was the 1800, उठ भी नहीं पा रहा था। एक दिन सुबह, करीबन 10-12 साल पहले की बात है, एक दिन सुबह मेरे पास उनका मम्मी का फोन आया था और मैंने उनको सुनाया था। अगेन प्लीज डोंट टेक इट एज ए चमत्कार, इट इज द साउंड थेरेपी, द साइंस ऑफ द साउंड थेरेपी को आपको समझना चाहिए। आप जो भी दवाई लेते हैं, आप आउटसोर्सिंग करते हैं हमारे म्यूजिक और मंत्र। आपके शरीर के अंदर जो डोज नाम की चीज है, आपको पता है डोज क्या है? मेजरमेंट नहीं, फुल फॉर्म, सब फुल फॉर्म ऑफ द डोज। इट्स सो ब्यूटीफुल, यू नो। एंड डोज कैन, हाँ सॉरी, correct, serotonin and endorphin, yes, these are the 4 happy hormones। आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर आपको लाल, काला, पीला, हरा सब कलर का दे देते क्या नहीं, रेनबोस कलर की दे देते क्या नहीं, यानी सुबह उठ कर फर करके डाल देते, डालते क्या नहीं? तो डॉक्टर आपको क्या बोलते, 1 दिन का डोज कि 2 दिन का डोज, है ना? तो फुल फॉर्म ऑफ द डोज इज द, जैसा बेन ने बताया, यू कैन क्रिएट द डोज विथ योर एनर्जी, मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो अगड़म तगड़म वाला नमस्कार मानते हैं, नो। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। आप हुकर में कभी लंबाई करते हैं? नमो लोय सब साहूणम कहते हैं ना? नो पापा, दीर्घोकर है, रसोकर नहीं, साहूणम। ये मुझे आचार्य महाप्रज्ञा जी ने सिखाया है, 2008 में लाडनू यूनिवर्सिटी में सिखाया था जी कुमार भाई। इट इज नॉट द साहूणम, इट इज द साहूणम। इसी तरह से जब भी आप स्पष्ट उच्चार के साथ में नमस्कार महामंत्र बोलेंगे, आप जब भी उसकी उच्चार करेंगे, अगेन दिस कैन बी योर रिजल्ट। Depends on your perception, depends on your shraddha, depends on your surrender. हाँ, exactly, it is a very beautiful question, exactly। हाँ, सब आप जो बोल रहे सही है। मैं आपको इट इज द अणा जो है दैट इज अ मूर्धा वाला ना है, मूर्धन्य है। तो मूर्धा से जो अणाकार निकलते हैं, दैट क्रॉस योर नाभि कमल, 3rd एनर्जी सेंटर, मणिपुर चक्र, एंड इट हैज गॉट एम्पल ऑफ एनर्जी। और आप न बोल के देखिए, दोनों दांत के बीच में से निकलते हैं। एक बार बोल के ट्राई करके देखिए, न न नमो, दोनों सही है, मगर यहां पे अगर 10% काम होगा तो वहां पे 90% काम होगा, क्योंकि आप णकार जैसा नमोत्थुणम बोलते हैं, इट इज अ नमोत्थुणम। तो हर एक नाम जो है इट कम्स फ्रॉम योर नाभि, 45 नाम है। नमोत्थुणम, अरिहंताणम, भगवंताणम, ऐग्यराणम, तिथ्याराम, समसंबुद्धाणम। इट इज द नमकार है, नमकार नहीं है सब। इट इज द अपभ्रंश ऑफ द नकार, क्योंकि प्राकृत शब्द में 3 डिवीजन है। वन इज द अर्धमागधी,
one is the Pali and one is the Sorseni. Ardhamagni is taken care by the Digambar, Deravasi and the Sthanakvasi. Pali is taken care by the Buddha and Sorseni is taken care by the Digambar. तीनों में णकार है, नकार नहीं है. आप नकार बोल सकते, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मगर रिजल्ट पे थोड़ा फर्क पड़ेगा. यू नो, इट इज द अणमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम. क्योंकि इसी को साथ में आप प्राणायाम कर सकते. इसकी वेलोसिटी कैसे होता है? नमो अरिहंत आणम, नमो सिद्ध आणम, नमो आयरी आणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय. इसी तरह से आप इसको साथ में प्राणायाम कर सकते हैं श्वासोच्छ्वास में. अगेन नमस्कार महामंत्र इज द साधना भी, साधन भी, साध्य भी. दो प्रकार की साहब आराधना होता है. एक को कहते हैं उपासना, एक को कहते हैं आराधना. उपासना मतलब उप आसना. आपकी जो भी आत्मा की स्टेट ऑफ कंडीशन है उसको ऊपर लेके जाने के लिए आप कुछ भी करिए, मौन करिए, उपांश करिए, मानस करिए, कुछ भी करिए. मगर whenever you are doing the आराधना, to get the आराध्यस grace or blessings, you have to maintain some criteria. These are the criteria. You should know which kind of word, which kind of pronunciation you are, and there is maximum benefits. जिसकी कहते हैं आप उच्चार को साथ में आप बोलेंगे. जैसे आपके यहाँ पे गुरुवर नम्र मुनि महाराज साहब जो उपसक्रम कराते, आपने सुनी होंगे, उसको कितना स्पष्ट शब्द है, कितना स्पष्ट. उपसक्रम वही है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, गुरुवर भी करते हैं, मगर उनकी उच्चार में कितना क्लैरिटी है. ये आपका सामने ही है, घाटकोपर में है क्या नहीं है? तो दैट्स हाउ द थिंग. अपने को ये सीखना है कि शब्द शब्द में. इसलिए कबीर जी ने साहब एक बहुत अच्छा बात किया है. शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के ना हाथ ना पाओ. एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव. महावीर ने वही शब्द चंड कौशिक को सुनाया, बन गए. और वही शब्द गोसालक ने चंद मैंने महावीर के सामने बताया, जबकि महावीर को घाव हुआ नहीं है, मगर सुनने वाले को घाव हुआ क्या नहीं है. तो शब्द शब्द में फर्क है, शब्द की परमाणु है. आप एक एक शब्द को जब तोड़ेंगे आपको पता चलेगा. आप अगर साइंस पढ़ते हैं तो आपको शायद पता है, अभी मॉडर्न साइंस कहते हैं कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, अगर एक ड्रॉप वाटर को आप अगर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल तोड़ेंगे तो पूरा न्यूयॉर्क सिटी को इलेक्ट्रिसिटी 1 महीना दे सकते, इतना ताकत है. हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्बार्डिंग हुआ था, कौन सा बम था वो? एटम बम था. तो एटम की इतना एनर्जी है. तो आप अगर नमो अरिहंताणम की णम मम अम रम हम तम इसी तरह से तोड़ते हैं तो कितना एनर्जी होगा. गारंटी आपको कहता हूं. एक नमस्कार महामंत्र, एक ओनली वन. देखिए पहले आपको अक्षर ब्रह्म की करना है, उसकी चक्रस में करना है, उसकी कलर के करना है, उसकी पेटल्स की करना है, उसकी शरीर 5 प्रकार की शरीर है. डू नो दैट 5 प्रकार की शरीर क्या क्या है? 5 कोश, देखिए आपने को मजा करना है, अपने को थोड़ी मुंह चढ़ा के बात करना है. मैं तो कर नहीं सकता सब, यू नो, दिस मजा करना है. मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आए, सिवा मेरे अपने कहा कुछ नहीं. अगर पंकज भाई मुझे चांस देते थे ना, मैं तो 8 बजे यहां पे आ जाता था. व्हाट मेक्स द डिफरेंस 5 जना की 50 जना की 5000 है. मुझे तो प्रभु की वाणी कहना है, हाँ या ना. तो मेरा प्रभु की वाणी डिपेंड्स ऑन 5000 लोग आएंगे, 500 लोग आएंगे, उसके ऊपर है कि नो मेरा प्रभु की वाणी तो मैं जंगल में जाके भी बोलूं, मैं तो हॉस्पिटल में जाके सुनाता हूं. जो भी है 5 कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश,
विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आणि प्राणमय कोश, 5 कोश। पंच परमेष्टि के 5 कोश को आप अलाइन कर दीजिए। उसके बाद में 5 एलिमेंट्स इन द नेचर, एग्जैक्टली, दैट इज यू हैव टू अलाइन विद द पंच परमेष्टि। एक नमस्कार महामंत्र गिनने के लिए मिनिमम आपको 12 से 13 मिनट लगेगा। बापा 10 मिनट में केवड़ी तो तमने एक माला थाई। हाय हाय, તમે गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम આવી જાય। નથી બાપા, તમને ખબર છે સિદ્ધસન દિવાકર सूरीને नाम સાંભળ્યું છે તમે? उनके गुरु ने तो पारांचित प्रायश्चित दिया था। क्यों? हम हर पूजा में वो बात करते हैं, आपको क्यों नहीं पारांचित प्रायश्चित मिलते नहीं है? सब आप स्वस्थ हैं ना, आप ये बात समझ लेना, आपकी बीमारी और कोई ले रहे, इसके लिए आप स्वस्थ है। हाँ, ये बात समझना है, ये तो जैन धर्म कहते हैं। मेरे गुरु सांख्य योग की साधना सीखने के लिए मैं जब ऋषिकेश में गया था 22 मई गर्मी के समय, ब्रिगेडियर सत्यजीत भाई, उनकी साधना के सिखाने का ऐसे स्टाइल था, 2:30 मीन्स 2:30, नो 2:29, नो 2:31, 2:29 आउट, 2:31 कर आउट, यू हैव टू बी देयर बाय 2:30। दैट इज द साधना सिखाने के लिए। तो साहब उनके घर पे गए, वो भी एसी गाड़ी में नहीं जा सकते, क्योंकि देखेंगे तो एसी गाड़ी में मुझे बाहर निकाल देंगे। તમે કહી દેજો કેટલા વાગે? हम 10 मिनट, 5 मिनट, इट्स ओके ओके। तो मैंने गया तो उन्होंने बोलता है कि ब्रिगेडियर थे ना, कुमार साहब चलो खा लो। मैं बोलता है सत्यजीत बना थोड़ा स्नान करूं। हाँ हाँ जाओ। तो उनकी बाथरूम जो बाबा आदम की जमाने की बाथरूम है, एकदम पीला कलर की, तुम्हारे गुजरात में શું કહેવાય? टबलर, टबलर ना, हाँ, तो वैसे। तो मैं तो अभी एक मग लिया, डाला, अभी तो साबुन लगा रहा हूं, अभी तो डालना है। विश्वास करिए, प्रॉमिस टू माय गुरु, दूसरी मग जब मैं पानी भर रहा था, कुमार साहब साउथ अफ्रीका के जंगल में जो कुत्ता भूखे प्यासे मर रहा है, उसके उत्तरदायी आप है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एपिटोम ऑफ द जैनिज्म? आपको समझ में हुआ? मैं 2 मग पानी डाल रहा हूं, इसके लिए साउथ अफ्रीका के जंगल में कुत्ते प्यासे मर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता आप स्वस्थ है क्योंकि आपकी बीमारी और कोई ले रहे? नहीं, आपको लगता है कि नहीं लगता होगा? नहीं नहीं, आप कैसे मुंडी हिला रहे हैं? या तो ना या तो हाँ। आ की आ, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? हाय हाय, તમે કેવા हाँ बोलो છો बापा? चोबियर कौन है? मैं तो चोबियर 2 बजे से किया हुआ, आप अभी तो शाम को किया चोबियर। हाँ या ना? तो पछी तो उसकी रेसिप्रोकेट हम क्या दे रहे हैं उनको? सब ये जानना जैसा वस्तु है। आपको लगेगा कि ये सब सुनने के लिए थोड़ी आता, हम तो थोड़ा ऐसा नमस्कार महामंत्र, सब ये नमस्कार महामंत्र की बात है। दैट इज द एपिटोम ऑफ द नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र इज द filled up with the God particles. If you doesn't understand the electron, proton, the neutron, then how you can understand the नमस्कार महामंत्र? So beautiful. एक मुद्रा आपको बताऊं जिसको आप करेंगे तो भी आपको आनंद आ जाएगा। बताऊं? हाथ को ऐसा लीजिए, लिया, पहले बिग फिंगर को क्रॉस करिए, बिग फिंगर देन बिग फिंगर क्रॉस, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, किया नहीं, उल्टा आपकी तरफ। जब भी मुद्रा विज्ञान करना है आपकी तरफ, आपकी तरफ, आप हमारे तरफ कर रहे हैं, आपकी तरफ, आपको मैं आपको बता रहा, आपकी तरफ, आपकी तरफ, ऐसे हो गया, किया। अभी तर्जनी से उसको पुल डाउन करिए, किया। अनामिका को जोड़ दीजिए वर्टिकली, रिंग फिंगर जिससे भगवान की पूजा करते हैं, जोड़ दीजिए, किया। अभी लिटिल फिंगर, छोटे फिंगर को, छोटे उंगली को थंब से क्रॉस से ऐसे जोड़ दीजिए, दिस इज द मुद्रा। 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 दिस इज द मुद्रा।
ये मुद्रा को लेके कभी भी आप प्रभु के दरबार में जाएंगे, आप कुछ ना कुछ लेके ही घर पे आएंगे। अगेन दिस इज नॉट द चमत्कार। मेरा सिद्धांत में कहीं पे चमत्कार है ही नहीं, मैं चमत्कार में मानता ही नहीं हूं। मेरा पुरुषार्थ चमत्कार क्रिएट करेगा। तो दिस यू कैन डू पुरुषार्थ। हाथ पुल डाउन वर्टिकली, छोटे फिंगर पुल डाउन विद द थंब, दिस द परमेष्टि मुद्रा, पंच परमेष्टि। यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग, यू नो। इतना सुंदर चीज है। मैं बोलते जाओ, रात खत्म हो जाएगा, कल गांठिया जलेबी से खत्म कर। ओ सॉरी, अभी तो ये प्रोविजन में नो गांठिया जलेबी। आई नो मैम, मगर फिर भी ना घाटकोपर में, घाटकोपर इतना फेमस फॉर घाटिया जलेबी। घाटकोपर में किसी का घर पे जाए घाटिया जलेबी नहीं मिलता, ऐसा हो ही नहीं सकते। तो मैं जो मंत्र की बात कर रहा था उतना मंत्र बोल के मैं खत्म करता हूं, क्योंकि आपको कल भी साधना करना है, मुझे भी अभी घर पे जाके मेरा आराधना करना है बाकी है। मगर 3:40 को जरूर उठूंगा। आप मुझे एक कॉल करके देखिएगा, जरूर मैं 3:40 को जगा हुआ हूं। इसलिए हमारा बिल्डिंग में कोई चोर नहीं आता, क्योंकि एक चोर जगा हुआ है इसीलिए। ओके, सो मंत्र, पैर की चप्पल खोल के बैठना प्लीज। मैं हम्बल रिक्वेस्ट है, वितराग वाणी है। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी हो। प्लीज पैर चप्पल, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, नो कंप्रोमाइज। सुनने के बाद में आपको लगेगा कि मैं क्यों आपको पैर की चप्पल निकालने के लिए बताया था। ओके, नमो श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्ठे मट्ठे क्षुद्रान स्तंभय दुष्टं चूरय चूरय मनवांछितं पूरय पूरय रिद्धिं वृद्धिं समिहितां कुरु कुरु स्वाहा। अभी स्टार्ट यहां से हो रहा है, देखिए। ओनली सेलेस्टियल साउंड, 2 रिदमिक पैटर्न, 2 छंद। एक छंद से शांत रस की तैयारी होता है, शांत रस की प्रकटीकरण होता है। एक रस वीर रस किस तरह से लेके तैयारी होता है। कभी कभार आपको लगेगा कि मुर्दा आदमी भी खड़े होकर चला जाएंगे। अगेन दिस इज नॉट द चमत्कार, दिस इज द पावर ऑफ द सेलेस्टियल साउंड। ओके, हरिगीत छंद। ध्वम ध्वम की दपम पधुद की दम दम दस की धर दप धोर बम ध्वम ध्वम की ध्रम दम दग दिगी दग दिक ध्रमंक द्रण न दै न बम झज झंक की झम झम झन न निज की निजन रंजनम सुरशैल शिखर भवति सुखद पार्श्वजिन पति मज्जनम। हरिगीत छंद। सेम छंद, सिर्फ राग चेंज हो जाता है, छंद चेंज होता है। देखिए, धुरम की दपम पधुद की दम दम दस की दर दपदौर बम दम दम की दम दम दग दिगी दग दृद के दमंक दन न दै न बम झज झंक झम झम झन न निज की निजन रंजनम सरशैल शिखर भवति सुखद पार्श्वजिन पतिमज्जनम फटरंगिनी फटरंगिनी तुंगिनी कितत गिगर्भ दुट के दुट नट पाठ बम गुण गुण न गण गण रन की ओम नम गुण गण गण गौरव झज झंक झम झम झन न निज की निजन रंजनम सरशैल शिखर भवति सुखद पार्श्वजिन पतिमज्जनम फटरंगिनी तुंगिनी कितत गिगर्भ दुट के दुट नट पाठ बम गुण गुण न गण गण रन की गुण गण गण गौरवम झज झंक झम झम झन न निज की निजन सज्जन कलवंत कमला कलित कलबल मुकुर भीषम महेजिनः ठंकी ठंकी ठई 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 पट्ट तले जाते तललम किलम लम तेंशि तेंशिनि डेंशि डेंशिनि बाधते ओम ओम किरम मम थंगि थंगिनि धंगि धंगिनि कलरबे जिन मतत मतम तमहिन तनुता नमत सुरनर महोत्सवे कुरान की खुंदा कुकुरदि दंदम अंबर चचपट रन केन्नम डनन डम डम डंबरे तिया सारे गमा पदानि नि दपम कर सुसुर सही बता जिन नट्ट रंगे कुशल मुनिशम दी सतु शासन दई बता तिया सारे गमा पदानि नि दपम कर सुसुर सही बता जिन नट्ट रंगे कुशल मुनिशम दी सतु शासन दई बता तिया सारे गमा पदानि नि दपम कर सुसुर सही बता जिन नट्ट रंगे कुशल मुनिशम दी सतु शासन देवता जरे जारे याद करू तुझने हूँ देखू धन्य धन्य जीवन मारू कृपाए निलेखू। दिस इज द पावर ऑफ द सेलेस्टियल साउंड। ऐसे कई सारे मंत्र अपना जैन धर्म में पड़े हुए हैं।
कई सारे मंत्र पड़े हुए हैं। बापू हम ये सब चीज को हम लैकिंग करते जा रहे, विलुप्त होते जा रहे। तो मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे सभी गुरु की आशीर्वाद है। ये दुनिया की अगर सबसे धनाढ्य आदमी कोई अगर है तो कुमार चटर्जी है, बिकॉज मेरा ऊपर मेरा गुरु की हाथ है। आपको मैं जो भी सुना रहा हूं मेरा गुरु की कृपा से सुना रहा हूं, वो तो आपके सामने नहीं है, मगर मैं उनकी कृपा से आपको सुना रहा हूं। जोगीराज श्रीमद आनंद जी मेरा गुरु है, भूरा पापा मेरा गुरु है। मुझे पता नहीं आप लोग जोगीराज श्रीमद आनंद जी को कभी मिले हैं क्या नहीं, मगर 400 साल पहले है, मगर जोगीराज श्रीमद आनंद जी मेरा गुरु है। हर रोज 3:40 को मुझे आकर सिखा के चला जाता है। आपको लगेगा ये मैं स्टोरी बता रहा हूं, ये फैक्ट है, ये घटना है। आप कोई भी गुरु भगवंतों को मेरा बारे में पूछ सकते हैं, सब कुमार चटर्जी को पूछेंगे, किसी को भी पता है आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही अंतिम में कहता हूं कि आपके पास नमस्कार महामंत्र नाम की ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, तस के नस कर देने वाले ताकत है उसमें, तस के नस करने वाले कोई भी इसी तरह से। बट यू हैव टू मैनिफेस्ट दैट एनर्जी, डोंट टेक इट लाइटली। आज के बाद आप जब नमस्कार महामंत्र की साधना करेंगे, आपको इसी तरह से नमस्कार महामंत्र की साधना कराए कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, बाद में ऐसे पंचनमकार सभ्य पाप प्रणासन मंगलानम च सभ्य सिंह परम अभय मंगलम। अगर आपको किसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो उल्टा नौकार गिनिएगा, पहले लाइन टू लाइन आता होगा उल्टा नौकार, अक्षर टू अक्षर आता है, अक्षर टू अक्षर। लम घमम ई वह मम ठप सिंधी वस चणम ला घमम नो सना पाप बस एल मौना रोका कमन चपन सोए अणन हुसा बाबस एल मौना अणन झाझा बहु मौना। इसी तरह से आप जब अक्षर टू अक्षर नमस्कार महामंत्र का करेंगे तो आपको पता चलेगा नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बुद्धाणम, नमो लोय सब्बसानो एष पंचनमकार सब्ब पाप प्रणासन मंगलानम च सब्ब सिंह परम भवै मंगलम। बापू नमस्कार महामंत्र की रचयिता कौन है, किसने बनाया, कौन बनाया? एग्जैक्टली अनादि, अनादि का भी तो आदि है ना। आपको ये करते करते आपको एक दिन पता चलेगा अक्षर पर ब्रह्म क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है। नमस्कार महामंत्र जो नकार मकार है ये किसने बनाया? नमः शिवाय में जो नकार वकार शवा शकार बकार आकार है बनाया किसने, कौन बनाया? एग्जैक्टली तो कहां से आया? यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे गैलेक्सी। तो आपको पता चलना चाहिए, मैंने जो आपको बताया कि आप जो स्वस्थ है उसी के कारण और कोई है। आप यहां पे बैठे हो भाई, परा प्रकृति आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपको पता है परा प्रकृति क्या है? प्रकृति तो हमको दिखाई देता है 5 एलिमेंट्स इन द नेचर, व्हाट इज द परा प्रकृति? आप ऐसा मत सोचना मैं आपको जोर जोर से बोल रहा हूं, ये मेरा नेचर है क्योंकि गाना गाता हूं मैं। अगर भक्तांबर गाऊं तो मैं इस तरह से गाऊं, भक्तांबर प्रणत माली मणि प्रभाणम मोद्योतकम दलित पापतमो वितानाम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगदा बालंदनम भव जले पततम जनानाम। मैं इस तरह से गाऊं बिकॉज आई हैव टू मैनिफेस्ट द एनर्जी विच एग्जैक्टली दैट मैनिफेस्ट एनर्जी जिन्होंने मैनिफेस्ट किया था वह है मान तुंगाचार्य। आप बोलेंगे रात को भक्तांबर गाने के लिए पाप लगता है, मुझे पाप कुछ नहीं लगता, मैं पाप पुण्य में मानता ही नहीं हूं, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, मेरे लिए पाप पुण्य कुछ है नहीं। मैं प्रभु की भक्ति करता हूं, मैं आधी रात को उठ के भी करता हूं, मैं उसमें मानता नहीं हूं। मैं प्रभु की भक्ति करता हूं, उसमें पाप पुण्य क्या है? मैं मेरा माँ को हक करूं, माँ को एप्लीकेशन करना है कि माँ अभी मैं आपको हक करूं क्या? नहीं, नो, मैं तो प्रभु को मेरा माँ मानता हूं। मैं मेरा जीवन को नौछावर कर दिया है, मुझे चाहिए 100% चाहिए, उसमें कोई दोहराए है ही नहीं। अने प्रभु दिए बिना रह भी नहीं सकते, उसको पता मैं ऐसा आदमी हूं, आई एम जस्ट लाइक ए फेविकॉल। बिलीव करिए,
तो मैं इस तरह से प्रभु की भक्ति करता हूं, आप भी करिए, जीवन में कुछ ना कुछ आपका प्राप्त हो जाएगा। अपनी नर्सरी में तो अगर पढ़े हैं तो आपको पता है भक्ति की रहस्य के बारे में उन्होंने कहा है, अष्ट महासिद्धि आंगणीय उभी मुक्ति छेमने दासी रे। कोनी दासी रे? कोनी एग्जैक्टली। तो तमने दासी ने मांगवानो कि रानी ने मांगवानो? रानी। तो रानी कौन है? भक्ति। दासी है मुक्ति, बाय प्रोडक्ट है। मांगना क्या है? मेरा भक्ति में ताकत होगा तो मुझे मुक्ति ऐसा ही मिलेगा, कोई मुझे दे नहीं सकते, कोई मुझे देगा नहीं। अगर देने वाला होता तो गौतम को महावीर पहले दे दिया होता। ये भ्रम से निकल जाइए आप। जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आपका नमस्कार महामंत्र प्रकट होगा नहीं, नहीं और नहीं। That's how the incredible power of the Namaskar Mahamantra. Incredible power. You can create that energy. What exactly Arihanta is? You can create that energy. What Siddha is? You can create that energy. What Ayaryanam, Acharya. तो मैं आपको बताऊं, पंकज भाई ने गलत आदमी को बुलाया। आई एम सो सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म। रात निकल जाएगा, नमस्कार महामंत्र खत्म नहीं होगा। अभी तो सब अरिहंत में आया है, अभी तो बाकी है, सब बाकी है। अरिहंत के बारे में आपको पता है? अरिहंत से आपको 4 lobes of your brain can be activated: temporal, parietal, occipital and frontal। 4 लोब को आप क्रिएट कर सकते हैं। अम रम हम तम सिम धम अम यम रिम यम उम बम झम यम सम हुम च नमः स्वाहा। 21 नाद ब्रह्म के गणधर द्वारा रचित साधना है। बापू कब जानेंगे आप? क्यों नहीं जानेंगे? बिल गेट्स ने एक शब्द बताते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको नहीं बता रहा हूं। उन्होंने बताते हैं, तुम गरीब होकर जन्मे हैं ये तुम्हारा पाप नहीं है, गलती नहीं है। तुम गरीब होकर मारोगे ये तुम्हारा गलती है। तुमने नहीं जाना है, मां की कोख से आया था, कोई प्रॉब्लम है, जान के जाना है। आज से आप नमस्कार महामंत्र की साधना करिए। जो पर्युषण महापर्व है, इसमें आपको कुछ कमा के जाना है। ये पर्युषण को मत जाने देना, मत जाने देना। प्रभु आपको सामने, आप आपका पापड़ को देख सकते हैं? आपके आंख के जो पापड़ है देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं या ना? पापड़ है क्या नहीं है? प्रभु एग्जैक्टली वहां पे बैठे हुए हैं, देखिए। मगर तमने મને શું તકલીફ છે ખબર છે? આપણે ગોતા ખાવાનો બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે। यहाँ जाओ ત્યાં जाओ ફલાના જાઓ ઢીકના જાઓ, પંચતી કરવાનું બસ, સવારથી સાંજ સુધી પંચતી। तने कहीं जवानी जरूरत नहीं थी। कबीर जी ने क्लियर डिक्शन दिया, मौको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आनंद गिर जी ने बताया, अवधू क्या मांगू गुणहीना बेगुना गणिना प्रवीणा, गाय न जानो बजाय न जानो ना जानो सुर सैवा, भाव न जानो भगत न जानो ना जानो पद सैवा। आपको सब मिल जाएगा। योगीराज कहते सब कुछ के खोल खोल के आपको बता दिया है भगवान ने, और हमको करना नहीं है सब। अगर हम करना चाहते हैं तो भगवान आपके पास खड़े हैं। सिर्फ आप एक डगला, एक पैर चलिए, भगवान 10 पगले आपकी तरफ आ जाएंगे। चलो तो सही बापा। तो खमेनी सब जीवे सब जीवा खमंत्रे मित्ति में सब भूजुपेरा मध्यम नकीने सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारण प्रधानम सर्वधर्मानम जनम ज्योति शासनम। जाने अनजाने कोई भी प्रकार वितराग आज्ञा के विराध न किया तो मन वचन का समीक्षा में दुक्रम। मगर आपको जो डांट के बोला बिल्कुल भी इच्छा में दुक्रम नहीं, नो नॉट एट ऑल। मैं चाहता हूं, मैं अगर 1 घंटा यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के बोला है तो किसी के मन में तो ऐसा होना चाहिए कि नमस्कार महामंत्र के साथ नहीं, इस तरह से होना। भले पंकज भाई मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड आपको पता है, आप किसी को भी पूछना, नंबर बन महाराज साहब को भी पूछना, मैं आज दिन तक किसी के पास ऐसा नहीं किया मेरा प्रोग्राम रखो, नो बिल्कुल नहीं। मेरे पास मेरा आनंद जी बैठे हुए हैं, 2 रोटी जरूर देगा, नहीं तो पंकज भाई तो ऐसा भी खिला देंगे। मैं पंकज भाई की तरफ देखा भी नहीं मैं अभी तक। देखिए प्रभु जब तक है, क्यों मैं डरता नहीं, बिल्कुल नहीं डरता। देखिए राम मरे, रावण मरे, मैं भी मरूंगा। भले चंदन की लकड़ी में टायर ट्यूब से तो जलाएगा जरूर ना, अगर कोई नहीं जलाएगा तो बीएम से ऐसा ही उठा के फेंक देगा। व्हाट मेक्स इट डिफरेंस टू माई लाइफ? व्हाई आई हैव टू बी भिखारी? आई एम नॉट द भिखारी। मैं भगवान के भिखारी बन के भक्ति नहीं करता हूं।
मैं भगवान की पुजारी बन के भक्ति करता हूं, अने प्रभु मेरे साथ में है। तो जाना जाने कोई भी प्रकार वितराग आज्ञा की विराधना किया है तो आपको पास से माफी मांगता हूं, मगर प्रभु प्लीज जाना, कुछ कर लेना पापा, यू नेवर नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट मोमेंट। मैं हर रोज मेरा पेशेंट को देखता हूं मरते हुए, आपको पता भी नहीं है, एक सेकंड में जीवन परिवर्तन हो जाता है। और जब मैं 4th स्टेज वाला कैंसर पेशेंट को जब देखता हूं हंसते हुए, अच्छा दूसरी बात आपको कह दूं कि मैं जो पेशेंट को ट्रीट करता हूं, मेरे पास आप कोई भी कॉर्पोरेट का नाम लीजिए, ऐसा नहीं है कोई मेरा पेशेंट नहीं, मैं नाम नहीं लेता हूं किसी को, मगर आज दिन तक मैं किसी को पास से आप किसी को भी पूछना, डॉक्टर कुमार चटर्जी, किसी के पास से एक 54 भी नहीं लिया है, एक 54 भी नहीं। मेरा पैसा से मैं जाता हूं, मेरा पैसा से मैं आता हूं। मैं प्रोग्राम की दबा के पैसा लेता हूं, मेरा प्रोग्राम जहां पे था दबा के पैसा लेता हूं, 10 लाख के नीचे मैं प्रोग्राम नहीं करता हूं, मगर पेशेंट को मैं कभी भी 1 रुपया भी नहीं लेता, मेरा पैसे से जाता हूं, मेरा पैसे से। उसके पीछे कारण है, कोई भी पेशेंट को मैं जब भी देखता हूं, मुझे 2005 याद आता है। 2005 November, I lost my father. He was suffering from cancer. And at the end of the day, Pankaj bhai, I couldn't see my father's dead body. अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अच्छा हुआ कि खराब हुआ? खराब हुआ? नो, मेरा पिताजी आज दिन भी मेरे साथ जिंदा है। अच्छा हुआ कि खराब हुआ? इतना सारे हजारों पेशेंट को मैं ट्रीट करता हूं बिकॉज ऑफ माय पिताजी। अच्छा हुआ कि खराब हुआ? एग्जैक्टली। आज अगर मैं पिताजी का डेड बॉडी देखता था तो मुझे अंदर ये ट्रिगरिंग नहीं होता था। आज मैं जो भी पेशेंट को देखता हूं, आपको तो मैं नाम नहीं बता सकता कि आप सबको जानते होंगे, उसके अंदर मैं मेरा पिताजी को देखता हूं तो मैं पैसा नहीं ले पाता हूं। तो अगेन आपको कह रहा हूं कि मैं हर रोज मैं पेशेंट को मरते हुए देखता हूं, जिंदा होते हुए देखता हूं। तो प्रभु कुछ करके जाना है ना? तो थैंक यू वेरी मच, आपको मैं प्रणाम करता हूं। સાહેબ મેં મિસ કર્યા છે તમને, મારે 8:15 વાગે કે 8:30 વાગે બી સ્ટાર્ટ કરી દેવાની જરૂર હતી સાહેબ. આઈ એમ વેરી સોરી, નથી આવી શક્યા, પણ મને ખબર નહોતી કે હું આ નોકાર મંત્રને મિસ કર્યો છે આજે તમારા શબ્દોથી, બહુ જ મિસ થયો છે. मेरा प्रोग्राम का एक सिद्धांत है, वो रथी महारथी कोई भी हो मेरा प्रोग्राम में 7 मतलब 7 बजे स्टार्ट है। भाई साहब बैठो प्लीज, आप बैठो प्लीज, 5 मिनट बैठो। नहीं उनको काम है, कोई नहीं 5 मिनट बैठो प्लीज। हाँ, अभी मैं एक बात बहुत सेंसिबल समझाऊं कि आप जैन नहीं होने के बावजूद भी इतना जानते हैं कि हम लोग अपने आप को भी जैन कहने के लिए काबिल नहीं है। आपको एक बात करूं, टू से वी आर नॉट, आपको एक बात करूं, पंकज भाई जो बोल रहा है सही है, मुझे पता है घाटकोपर से मुझे अखंडित यहां से निकलना है, इसके लिए मैं आपको बात कर रहा हूं। सब कैन यू टेल मी, जन्म से कौन जैन होता है? आपकी 24 तीर्थंकर जैन नहीं थे साहब, आपका 11 गणधर ब्राह्मण थे। जन्म से कोई जैन नहीं होता, कर्म से जैन होता। मैं गारंटी देके बताता हूं, आपसे कई ज्यादा जैन मैं हूं। मैं बाहर पानी भी नहीं पीता हूं। मैं कोई शादी ब्याह में 2010 से मैं कवर देके आ जाता हूं, मैं पानी में भी हाथ नहीं लगाता हूं। इवन मेरा बड़े भाई का साहब, मेरा बड़े भाई की मेरा फैमिली में पहले शादी था, मेरा सिद्धांत था मैं नहीं खाता हूं। मैं, आप मानोगे, मैं यहां से कलकत्ता गया, कलकत्ता से मेरा गांव गया, मैं इनोवा कार में थेपला और खाकरा लेके गया था, डिप्टी वाला गिरनार वाला चाय लेके गया था, फ्लास्क में गर्म पानी लेके गया था, बाहर आते थे, गाड़ी पे बैठते थे, पानी डुबाते थे। 3 दिन मैं इस तरह से रहा हूं। सिद्धांत इस सिद्धांत, मूल सिद्धांत में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। Again, I have performed twice in the White House, 2 बरस 2011 and 2012। वहां पे स्पेशल रिक्वेस्ट देना पड़ता था। व्हाट इज माई रिक्वेस्ट? कैन यू बिलीव व्हाट वाज माई रिक्वेस्ट? नो वाइन, नो नॉन वेज, एंड दे मेंटेन दैट थिंग। दैट इज मी, बिकॉज मेरा गुरु ने मुझे सिखाया सिद्धांत में, मूल सिद्धांत को कभी प्रश्न नहीं है, कभी प्रश्न नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो भी 3:40 को उठना छोड़ूंगा नहीं, भले मैं मर जाऊं, जमराज आएंगे तो भी वो रुक जाएंगे कि नहीं कुमार अभी साधना कर रहे हैं। तो अगेन कुछ करना है पापा, कुछ करना है, जीवन को ऐसा नहीं जाने देना है। थैंक यू पंकज सर।
एक पर्सनल सवाल करता हूँ, 2 मिनट के लिए सवाल। आपका फैमिली में कौन है? मेरा फैमिली में मेरा माताजी है, मेरा पिताजी को मैं खोया हूँ 2000 में, मेरा धर्मपत्नी है, मेरे एक लड़की है, मेरे 40 बच्चे हैं। कितने बच्चे? अभी पूछिए 40 बच्चे कौन है? 40 बच्चे हैं? नहीं नहीं, पेशेंट तो मेरा 1000 में है, मगर बच्चे मेरा 40 है। मेरा, हाँ बोलिए बोलिए। नो स्टूडेंट, मेरा 40 बच्चे जो हैं, जिसको आप स्वानदेव कहते हैं, शकटनु भार स्वानताने जिसको कहते हैं, वो मेरा बच्चे है। ऐसे मेरा 40 स्ट्रे डॉग है। मैं उसको, हाँ 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 बेन, वो लोग जैन है, सुबह दूध पीता है, दोपहर को पनीर खाता है, शाम को ड्राई फ्रूट खाता है। 40 बच्चे हैं, एंड आई एम द प्राउड फादर ऑफ द 40 बच्चे। आई एम द प्राउड फादर। वो लोग सब वेजिटेरियन है। आप सुबह को मुझे देखेंगे पार्लर सेशन में, आपको मुझे पहचानने पे नहीं होगा ये कुमार चटर्जी है, क्योंकि मेरा पूरा शरीर में ऐसा उनकी नखुन लगाए रहते हैं। दे लव मी लाइक ए फादर एंड मदर। मैं उनके माँ बाप हूं। तो 40 बच्चे हैं। आपसे वापस हम अगले साल के लिए बुक हैं, हम ऐसा मत बोलो कि हम नहीं बुलाएंगे। और वो टाइम पर 8 बजे से स्टार्ट करेंगे हम लोग वी विल वेट फॉर द नौकार मंत्र। एंड हम लोग बहुत मिस किया है नौकार मंत्र के लिए। हमारा जैन धर्म की हम अब हमारी ताकत है। अच्छा तो रात निकली जैसे पची। पंकज भाई सबसे आज मुझे अच्छा लगा, उन्होंने जब भी मुझे बताया कि 200 रोटी 200 हम लोग नहीं 2000 एक साल हो गया 200 की 2000 2000 रोटी डेली। इज दिस नॉट द जैन धर्म? दिस इज द जैनिज्म। यू नो, मैं नहीं खाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मेरे बच्चे लोग नहीं भूखा नहीं सोए। आप सब रात को सोते टाइम इतना कहना, हम कहते ना कि खाने में सब वजीवे। दिस इज द थिंग मैन, दिस इज द थिंग कि प्रभु मेरा बाजू वाले भूखा नहीं रहे। यू कैन चेंज दिस वर्ल्ड। व्हाई गवर्नमेंट विल डू? वी कैन डू दिस थिंग। व्हाई वी विल वेट फॉर दैट गवर्नमेंट विल डू? मैंने गवर्नमेंट के लिए वेट नहीं करता हूं। मेरा जो पैसा बचाता है मैं मेरा पेशेंट को ट्रीट करता हूं। व्हाई आई शुड वेट फॉर गवर्नमेंट? तो दिस इज द जैनिज्म। ये जैन धर्म को पालेंगे तो नौकार मंत्र आपके घर पैसा स्टेप बाय स्टेप आपके पास आएगा। ये कम ऑन, आई एम देयर। मोक्ष भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, मोक्ष आपके पास आएंगे। सर, आपने एक रोटी का बात किया है, तो उसके पीछे स्टोरी है जो हमने डिस्ट्रीब्यूशंस का स्टार्ट किया गरीब आदमी को। आप छोटी सी बात, हमारे धुरंधर यहाँ बैठे हैं जो रोटी को रिस्पेक्ट करके देते हैं। आदमी आते हैं जिसका हाथ मेला है, जिसकी कपड़े मेले, उसके पास में पॉकेट में पैसा नहीं है, और आके हमारे बैठे सब लोग, महेश भाई है, प्रफुल्ल भाई है, प्रीति बहन है, तो पूछते हैं कि साहब आज मेरे पास 8 रुपया है। कितना? 8 रुपया। तो रोटी मिलेगा? हाँ, हम बोले दे देंगे आपको, 8 रुपये में रोटी देंगे। लेकिन कल तो मैं पूछता हूँ, मैं 2 रुपया वापस देगा? कल? हाँ सर मैं दे दूंगा, कल 2 रुपया वापस दे देगा। And next day morning he comes, he gave the 2 rupees. क्या बात है? And sir, believe me, the people who come non-stop, and we was waiting over there कि अभी हमारे पास में 5 बंडल बचा हुआ है, कैसे 5 बंडल को कौन नहीं आया है कौन, क्योंकि 9 महीना से हम प्रैक्टिस में, और we find very comfortable। इतना फिश मिलता है कि जिसकी लिमिट नहीं है। 100। और एक घाटकोपर की धरती में हमने कुछ स्टार्ट किया महावीर स्वामी की दया से। हम महावीर की ताकत में कोई जगह पे हम रुक जाते हैं तो महावीर को याद कर, अभी नौकर मंत्र के साथ में महावीर को याद करो तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। मैं आप अनाउंस करेंगे, मैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा पंकज भाई प्लीज प्लीज। अद्भुत, खूब ज सुंदर। હું અને તમે एक मिनट। खूब ज सुंदर। हर्ष हर्ष। जैनम जयती, शासनम जैनम जयती। આપણે ત્યાં અહીંયા મહાનુભાવો પણ પધારેલા છે,
શ્રી હરેશભાઈ અવલાણી, શ્રી પ્રફુલભાઈ મહેતા, શ્રીમતી નીતાબેન મહેતા, શ્રી મધુભાઈ દેસાઈ, શ્રી નીતિનભાઈ બજેરિયા, શ્રી ચેતનભાઈ ચબાડિયા, શ્રી દક્ષેશભાઈ, શ્રી મનસુખભાઈ પંચમ્યા, શ્રી વિનોદભાઈ શાહ, શ્રી પ્રવીણભાઈ, શ્રી જયેશભાઈ શેઠ. એકચ્યુઅલી આપણે આ બધા જ મહાનુભાવોનું સન્માન કરવું છે, પણ કદાચ આપણો ઓડિટોરિયમની ટાઈમ લિમિટ હવે પૂરી થઈ ગઈ છે, એટલે માત્ર નામ જ આપીને હું નામનો ઉલ્લેખ કરીને જ અમે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. અને પ્રતિભાબેન પ્લીઝ માંગલિક માટે આપ. ના ના ના, તમે આવો. માંગલિક પ્રતિભાબેન આવે છે અને આજે કોઈનું બહુમાન નથી કરતા. એના 2 રીઝન છે. અમે દીપક નથી સરાવ્યો, પણ નૌકાર મંત્રની તાકાત હતી એટલે દીપક નથી આવ્યો. પ્લીઝ 2 મિનિટ. શ્રી શ્રી ગુરુદેવની આજ્ઞાથી ચત્તારી મંગલમ, અર્હંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પનત્તો ધમ્મો મંગલમ, ચત્તારી લઘુતમા, અર્હંતા લઘુતમા, સિદ્ધા લઘુતમા, સાહુ લઘુતમા, કેવલી પનત્તો ધમ્મો લઘુતમા, ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ, અર્હંતે શરણમ પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ, સાહુ શરણમ પવજ્જામિ, કેવલી પનત્તમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ. 4 શરણા 4 મંગલ 4 ઉત્તમ કરે છે. ભવસાગરમાં નવ ડૂબે તે, સકલ કર્મનો આણે અંત, મોક્ષ તણા સુખ લહે અનંત. ભાવ ધરીને જે ગુણ ગાય તે જીવ તરીને મોક્ષે જાય. સંસારમાં હી શરણાચાર અવર શરણ નહીં કોઈ, જે નરનારી આદરે અક્ષય અવિચળ પદ હોય. અંગૂઠે અમૃત વસે લબ્ધિ તણા ભંડાર, ગુરુ ગૌતમને સમરીએ મનોવાંછિત ફળદાતાર. ભાવે ભાવના ભાવીએ ભાવે દીજે દાન, ભાવે ધર્મ આરાધીએ ભાવે કેવળ જ્ઞાન, પ્રભુ ભાવે પદ નિર્વાણ. જય જીનેન્દ્ર. આજની પ્રભાવના શ્રી સ્વર્ગવાસ ફૂલચંદભાઈ ગોપાલજી ગાંઠાણી હસ્તે માસ્ટરભાઈ ગાંઠાણી, જે મારા ફર્સ્ટ કઝિન છે, એમના તરફથી છે ને રોજ એમની પ્રભાવના છે.